Hello, good evening, everyone. Guys, today is day 4 of our 5 days high ticket workshop. And today we are going to deep dive on very important topic, high ticket closing. You know, even anybody is very expert in his field. He knows everything of his field. But even after that, they are not able to impact the society in that way because they are not a closer. If you do not close, you do not acquire and you do not transform other people's life. So, answer me, what is the most important job of a coach? What is most important job of a coach? Type in chat box. What is most important job of a coach? Okay, can you type? Allow to talk. The most important job of a coach is transformation. They transform people most of the time. So why we are here? We are here to transform other people's life. So in this journey, if we are not able to close people, अगर हम इस जर्नी में लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए, उनको समझा नहीं पाए, तो इम्पैक्ट कैसे करेंगे? तो रियल इम्पैक्ट कैसे होगा? इस चीज को बहुत डीपली समझने के लिए, जानने के लिए आज मेरे साथ है स्पिरिचुअल हीलर एंड स्पिरिचुअल काउंसलर मिस ममता झा, who will tell you in details why it is important to make people understand that there is the problem exists in their life, and then we can take them to the next level. But what are the difficulties here? What problems we face? हम किस तरीके के प्रॉब्लम्स फेस करते हैं? कहाँ कहाँ समस्याएं आती है? और उन्होंने अपनी इन समस्याओं को किस तरीके से हैंडल किया, और अभी भी वो उन समस्याओं को कैसे हैंडल करती है? इन चीजों को अगर हम सीखेंगे और अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली है कि हम एक अच्छे ट्रांसफॉर्मर बन सकते हैं, एक अच्छे कोच बन सकते हैं, एक अच्छे गाइड बन सकते हैं, और एक इम्पैक्टफुल लीडर बन सकते हैं. So let's welcome Miss Mamta Jha today on our day 4 of high ticket closing workshop. Good evening, all of you. Good evening. Good evening, Chetan ji. And thank you so much for calling me here as a guest. So thank you so much, Chetan ji and Dulal ji. और बहुत Yeah. अच्छा लग रहा है कि आज गेस्ट स्पीकर के जैसे मैं आई हूँ यहाँ पे और अपने जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है जो शेयर करूंगी. होप आई एम ऑडिबल. एम आई? Yes, yes, yes. You are fully audible. ओके ओके, थैंक यू Yeah. सो मच. Yes, those who are watching, myself Mamta Jha, and I am a spiritual counselor, healer, you can say, and a motivational speaker. So, अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो yes, I was also like a housewife, you can say, who was struggling once, who was crying, who was thinking that somebody will come and they will help me out. कहीं से कोई आए मुझे बचाए, इस तरह का था लाइफ मेरा भी एक समय में. But hopefully means I did not get any, you can say, that mentor or anything that time. But then I worked upon myself,
and I worked very hard. And then I transformed my life through spiritual knowledges and everything. Then I took classes and everything. And I just transformed my life completely, complete transformation. After that, also, I did not stop. I was teaching, but then I resigned from the school after doing B.Ed. And then I did my counseling, studies. I did masters in counseling. And then I said that means I promised myself ki when I can come out of this journey, means from this life, this type of life, why not others? So that now that has become my mission. वो मेरा एक मकसद बन गया मेरी लाइफ का कि जैसे मैं निकली हूँ वैसे बहुत सारे लोग होंगे जो लड़ रहे होंगे, जो सोच रहे होंगे कि कोई तो आए काश, तो क्यों ना मैं उनके लिए एक दिया का काम करूं, क्यों ना मैं उनके जीवन में एक ज्योत जलाऊं। और यही मेरा मिशन है। बहुत ज्यादा मेरा ये संकल्प है कि मैं जितने लोगों को ऐसा व्हाट वाज दैट इवेंट या व्हाट वाज दैट वन मोमेंट जहां आपको ऐसा रियलाइज हुआ कि आई शुड नॉट ओनली चेंज माय लाइफ बट ऑल्सो आई विल चेंज अदर पीपल्स लाइफ? ऐसा क्या मोमेंट हुआ या ऐसे क्या इवेंट हुआ आपकी लाइफ? ऐसा इवेंट मीन्स आई वाज सिटिंग इन मेडिटेशन यू कैन से। अधिकतर जब आप मेडिटेशन में बैठते हो या कुछ तो आपको अलग अलग थॉट आते हैं। तो व्हेन आई वाज टीचिंग at night when I was sleeping, I was not getting that satisfaction, satisfaction from inside. मेरे पास पैसे भी फुलफिलमेंट। अच्छा था बट सेटिस्फेक्शन नहीं था कहीं इनसाइड। तो मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा था, क्लैरिटी नहीं था कि व्हाट आई वांटेड, बट कुछ था। तो एवरी डे आई यूज टू शेयर इन माई होम कि कुछ तो मुझे करना है, कुछ तो मुझे करना, बट क्या वो क्लैरिटी नहीं था। तो ऐसे ही एक दिन मेडिटेशन में बैठी और फिर मैंने देखा कि मैं बहुत लोगों की कोरोना के टाइम में आई वॉज हेल्पिंग पीपल थ्रू ऑनलाइन, मीन्स जो भी कर सकती थी जितना हेल्प वो मैंने किया। दैट टाइम इट वाज नॉट माय प्रोफेशन। तो मुझे वो उस टाइम वो थॉट आया कि आई कैन हेल्प पीपल, गॉड हैज गिवन मी दिस पोटेंशियल। हो सकता है परमात्मा ने मुझे इससे निकाला है ताकि मैं औरों को निकाल सकूं। तो क्योंकि उस वक्त सारे लोगों को कॉल आ रहा था और वो सब मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, है ना, कि मैं उन्हें कुछ ऐसा दूं जिससे कि उनकी भी लाइफ में खुशी आ जाए। वो सोचते थे कि मैं कैसे ऐसे काम हूँ, क्वाइट हूँ, कैसे मैं एंजॉय कर रही हूँ। तो वो मुझसे टिप्स लेते थे। तो इस तरह से कोरोना के टाइम में मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया अपना वर्क। फिर मैंने बहुत सारे मेंटरशिप, बहुत सारा चीज ज्वाइन किया। और ये एक अंदर से आपको आते रहेगा कि यस, मतलब स्टार्टिंग में आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। तो एक मेरा अंदर एक ये भी था कि आई एम अ स्पिरिचुअल काउंसलर सो आई विल नॉट आस्क फॉर मनी, दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग ऑलवेज। ओके, सो देयर आर सो मेनी मेंटर्स जो जिन्होंने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सालों तक तो मैंने ऐसे ही फ्री में लोगों का किया। बट आफ्टर टेकिंग मेंटरशिप, आई टुक मेंटरशिप फ्रॉम चेतन सकुजा जी ऑल्सो, एंड ही ऑल्सो मोटिवेटेड मी कि नहीं, पैसा क्यों जरूरी है। तो क्या होता है, बहुत समय के बाद आपको अचानक से कोई चीज स्ट्राइक करता है और फिर आप खुद से बातें करते हो, है ना, कि सही क्या है गलत क्या है। तो देन आई रियलाइज वंस व्हेन आई वाज टेकिंग मेंटरशिप, तो बहुत सारी चीज की क्लैरिटी होती है। तो आपको वो जो ब्रेन एक था ना मेरा बना हुआ माइंडसेट, नो नो चार्जिंग नथिंग, तो वो भी फिर ये हो गया कि व्हाई नॉट, बिकॉज आई एम डूइंग अ गुड जॉब, पीपल आर रेडी टू पे, देन व्हाई नॉट। अगर मैं लूंगी तो मैं और बड़े स्केल पर बहुत लोगों की और हेल्प कर सकती हूँ। जैसे हम्म। मैं मोटिवेट करूँ, आई वांट टू गो समवेयर, आई वांट टू कंडक्ट दिस दैट, सो मेनी, जिस जो भी चीज आप करना चाहते हैं, तो लाइफ में मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो मुझे रियलाइजेशन हुआ। और बहुत सारे मेंटर्स से मैं मिली। और बस ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा, दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस। आई एम नॉट सेइंग कि अभी भी मेरे कंप्लीट हो गया, स्टिल आई एम लर्निंग एंड देन आई एम शेयरिंग इट। ओके, सो यहाँ पे जो भी बैठे हैं, एवरी वन नोज कि क्या सही है क्या गलत है ना, हम सबको पता है ये सही है ये गलत है। ये भी पता कि ऐसे करने से ऐसा होगा, बट स्टिल वी आर नॉट डूइंग। तो जानना एक अलग चीज है कि हमें पता है, बट उसको इम्प्लीमेंट करना वहां पे डिफिकल्टी आती है ना। तो वहां पे आपको क्या है कि एक मेंटोर की सख्त जरूरत पड़ती है।
Okay, so then I was looking for someone, and I joined so many, you know, learning I took from so many people, and slowly जो NLP का मैंने कोर्स किया, काउंसलिंग की बहुत ज्यादा की, मेंटल हेल्थ का बहुत ज्यादा मैंने कोर्सेज किया, सब कुछ किया। और यहाँ तक कि हजारों हजारों केस अब तो मैं बहुत इजीली, जैसे आप सामने आते हो तो मैं समझ जाती हूँ रूट कॉज, व्हाट इज द रूट कॉज, एंड आई एम वर्किंग अपॉन दैट। एंड नाउ इट हैज बिकम वेरी इजी, यू कैन से। स्टार्टिंग में आपको लगेगा थोड़ा सा मुश्किल है, जब इन्होंने मुझे बताया कोचिंग के बारे में तो मुझे वो आइडिया उस वक्त नहीं था। देन आई स्टार्टेड डूइंग दैट, तो मैंने वर्कशॉप लिया, बहुत कुछ है। तो व्हाट आई वांट टू से इन वेरी शॉर्ट आई विल से, एक मेंटर का होना, वो भले ही उम्र में मुझसे छोटे हूँ, दैट डजंट मैटर। ओके, इफ यू इफ यू हैव अ मेंटर, गुरु, एक हम लोग स्पिरिचुअल में भी बोलते हैं ना, एक आपका गुरु होना चाहिए। तो आपका गुरु कोई भी हो सकता है जिसको आपसे ज्यादा उस फील्ड में नॉलेज है। सपोज आई हैव नॉलेज कि कैसे मैं ठीक कर सकती हूँ, आई हैव कंप्लीट नॉलेज कि मुझे पता है ये डिप्रेशन में है, इसको कैसे ठीक करना है, इसे एंजाइटी है, इसे ओसीडी है, इसके रिलेशनशिप, बट आई डोंट नो द प्रोसेस। तो वो आपको गाइड, सिस्टम में आपको ढालेंगे, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग मुझे टाइम देंगे तो एक छोटा सा स्टोरी मैं बताऊंगी कि वाई मेंटरशिप बिल्कुल प्रोग्राम। बिल्कुल। तो एक मैं बहुत शॉर्ट में बताती हूँ कि एक गाय थी, आप लोगों ने भी सुना होगा। एक गाय थी और वो जो घास चर रही थी, और उसी वक्त एक शेर आ गया और वो उसके ऊपर जंप करने, मतलब सोचा कि चलो आज इसे ही मारता हूँ, खाता हूँ। तो गाय ने अपनी जान बचाने के लिए बहुत दौड़ लगाई, बहुत दौड़ी, और दौड़ते दौड़ते वो बस एक जगह गिर गई नीचे, खाई जैसा लग रहा था, बट वो क्या था, वो पूरी तरह से एक दलदल जैसा होता ना जगह, वो वाला था, उसमें वो धंसते गए। ओके। तो उसके बाद मैं पूरी तरह फंस गई, बस उसका सर दिख रहा था। तो वो जो शेर था उसके पीछे पीछे आ रहा था, वो भी उसको पीछा करते करते फिर उसने भी जंप लगा दिया। तो फिर वो भी अब दलदल में गिर गया, और वो भी नीचे 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 दबते जा रहा था। जब वो सर बचा था, तो गाय ने पूछा शेर से कि क्या तुम्हारा कोई गुरु है? तो शेर देखा, उसने बोला कि नहीं। तो गाय ने बोला कि बस यही फर्क है तुम्हारे में और मुझ में। मेरा जो मास्टर है वो जब देखेगा कि मैं घर नहीं पहुंची हूँ, तो वो मुझे ढूंढता ढूंढता यहाँ आएगा और मुझे निकाल के ले जाएगा, और तुम बस यहीं मर जाओगे। तो ये बेसिक सा एक छोटा सा स्टोरी है जो हमें बताता है कि लाइफ में गुरु का होना, मास्टर का होना कितना इम्पोर्टेंट है। जब आप पावरफुल एक स्टोरी। जब आप एक मेंटर हायर कर, मतलब आप किसी के जाते हो अंदर में, तो बट वन थिंग यू हैव टू लिसन, यू हैव टू हैव फुल फेथ ऑन हिम। ओके, एक होता है ना कि वी हम लोग एनरोल तो कर लेते हैं, बट देन आफ्टर सम टाइम हम फिर अपना दिमाग लगाने लगते हैं, है ना। आपको कुछ नहीं करना, जब आपको एक मेंटर मिलते हैं फिर आपको पूरी तरह ब्लाइंड फेथ करना है और उनको सुनना है। बस एक ही काम करना है कि वो जैसा बोले वो करते रहना है, एंड यू विल सी दैट, मतलब जो आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, इतना कुछ हम लोगों ने सुन रखा, बट व्हाई इट इज नॉट मीन्स दे आर गेटिंग सक्सेसफुल। सब आधे लोग को मिल रहा है और आधे को नहीं, क्यों? क्योंकि क्योंकि आधे लोग लोग फिर, कंप्लेन माइंडसेट करते रहते यस, हाँ, वो कंप्लेन है। वो वो क्या होता है ना कि डाउटफुल होते हैं। ज्वाइन किया, फिर सोचा कि नहीं नहीं, ये मैं आई एम थिंकिंग दैट यस आई एम हैविंग अ लॉट्स ऑफ मनी, आई एम हेल्दी वेल्दी। फिर आइस खोलेंगे और फिर बोलेंगे नहीं नहीं, मेरे तो हेल्थ बहुत खराब है, मेरे तो तबीयत बहुत खराब है, नहीं नहीं मेरे पास पैसा कहाँ, मेरे पास नहीं है। तो क्या हो रहा, आप मिक्सचैरिटी डाल दे रहे हो साथ में, फुल हैं। फुल्ली विजुअलाइज कर रहे हो ना, तो उसको अंदर तक ले रहे हो। तो ये हम मिक्सचर कर देते हैं, मीन्स कंप्लीट ट्रस्ट नहीं करते खुद के ऊपर भी, तो उनका फिर वो यस। मैनिफेस्ट नहीं होता। Yes. तो like I am Chetan ji and Dulal ji, they are working very, very hard. And I also once worked very hard. जो आज मैं जहाँ पहुंची हूँ वो ऐसे ही नहीं आ गया है।
बट टुडे पीपल थिंक कि रातों रात चमत्कार हो जाएगा, जो कि नहीं पॉसिबल है। हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला तो हार्ड वर्क, सेकेंड इज मेंटर, एंड थर्ड इज योर राइट डायरेक्शन। हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, बट अगर डायरेक्शन ही रॉन्ग है तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, और मैंने भी बहुत पहले से स्टार्ट किया है ऑनलाइन। अब मीन्स कोरोना के बाद से दिखी हूँ, बट क्या है कि कंसिस्टेंसी, यस दैट वाज आल्सो मिसिंग ना, दैट इज द की वर्ड। तो आपकी चाहे कैसे भी हालत हो, बट आप कंसिस्टेंट रहिए अपने वर्क में, तो एक ना एक दिन वो दिखेगा ही। पता नहीं कब वो क्लिक कर जाए। तो व्हेन आई वाज डूइंग माय वर्क, आई एम डूइंग काउंसलिंग, आई वाज डूइंग जस्ट काउंसलिंग, ओके, पीपल आर कॉन्टेक्टिंग मी, क्योंकि मैंने वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दिया था बहुत पहले से। अब जाके क्या हो रहा, वो फ्रूट्स दे रहा। बोलते ना, कर्म करो फल की चिंता नहीं। तो मैंने हम्म, कर्म किया, और मैंने कभी हम्म, चिंता की, बट वो अब फल खुद बन के आ रहे हैं। आप मेरे अगर मोबाइल देख लोगे तो मैसेजेस ही भरे हैं, एंड दे आर हम्म, आस्किंग अपॉइंटमेंट। और सिर्फ वही नहीं, फिर पीपल आर कॉलिंग मी, जैसे रेडियो स्टेशन में दे आर कॉलिंग मी, और भी पॉडकास्ट कर रहे थे वहां बुला रहे वहां। तो ये क्या था, अचानक से रातों रात नहीं हुआ। आपकी मेहनत, लोग हैं जो ऑब्जर्व करते रहे, भले वो आपकी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, कमेंट नहीं कर रहे, बट दे आर ऑब्जर्विंग यू डे एंड नाइट। एंड थिंग इज दैट लाइट दैट फ्यूल इनसाइड यू शुड नेवर गेट एंडेड। एक होता है ना, थोड़े समय तक हम बहुत एक्टिव होते हैं, फिर हम वापिस से नहीं होगा, डाउन वापस चले से उसी जाते। मोड में आ जाए। यस, यस। वो नहीं, आपको ब्रेक लेना, आप लो ब्रेक, ब्रेक लो, ब्रेक के लिए मना नहीं करती हूँ, बट फिर से रिफ्रेश होके और अच्छे, और तब बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे। एंड आई वुड लाइक टू टेल माई ऑडियंस कि मॉर्निंग जो बेस्ट मॉर्निंग आवर 4 to 6 बेस्ट होता है, जहाँ आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे। आपका ब्रेन एकदम एकदम फ्रेश होता है, तो एब्जॉर्व करता है बहुत कुछ। तो उस वक्त आप होंगे तो आपको क्लैरिटी भी मिलती जाएगी, लाइफ में बहुत कुछ होता जाएगा। जैसे कि मुझे कभी अभी ये नहीं लगता कि मैं अब इतना हो गया, बस नहीं, अब इससे आगे नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट। एंड पीपल आर जस्ट लाफिंग कि ये क्या, मीन्स देखो, आपको रोकने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे। तो कोई कहेगा कि क्या फायदा इतना करके, अब एज देखो अपना, कोई कुछ बोलते जाएंगे। तो आपको बोलने बोलेंगे लोग, हंसेंगे लोग, सब कुछ करेंगे। आपको उनकी बातों से मोटिवेट करना खुद को। जैसे मेरी लाइफ का एक ये है कि when when there was a time when I was not facing camera, ठीक है, I was having fear of camera, I was not, सेल्फी तो मैं दूर दूर तक नहीं लेती थी, और लोग उसका मजाक उड़ाते थे बहुत तरह से, बट मैंने अंदर से संकल्प कर लेती थी कि यस, वंस आई विल डू दिस एंड आई विल शो देम। तो वैसे ही कोई अगर किसी बात का मजाक उड़ाते तो मैं उसको बुरा नहीं मानती हूँ। मैं मीन्स खुद को एकदम उसी चैलेंज वक्त करती है। एक होता करती हूँ खुद को खुद को। चैलेंज। हाँ, हाँ। जैसे सपोज आपने बोला कि कैसे ड्रेस पहनी हो, अच्छा नहीं लग रहा, मैं बुरा नहीं मानती हूँ कभी, मैं बोलती हूँ ओके। और मैं उसी वक्त सोची कि यही ड्रेस मैं एक दिन पहनूंगी और यही बंदा उसकी तारीफ करेगा। और आप विश्वास नहीं करोगे कि ये होता है। और वो भूल जाते हैं कि किसी ने उसने बोला था, लेकिन वो 4 साल बाद भी, बट वो बोलते हैं, ये ड्रेस तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे बहुत अंदर से हंसी आता है कि देखो मैंने वो करके रख, मैंने किया। तो एवरी टाइम और यस, एक यस। बारे में बताऊंगी कि जो मेंटल अवेयरनेस का मैं बहुत ज्यादा वीडियोस और बहुत जगह जा जा के इसके बारे में चर्चा कर रही हूँ, मेंटल अवेयरनेस। तो लोगों को एक्चुअली जानने की बहुत जरूरत है कि मेंटली हम सब सिक हैं आज, हम सब। हमें लगता है नहीं, खाली वो एक स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन यही नहीं है, बहुत तरह के मेंटल इश्यूज आ रहे हैं, और वो अब बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अगर हम में अवेयरनेस नहीं होगी ना, तो हमें लगेगा कि ये तो होता ही है। तो इसी तरह का एक केस जो आज मैं हैंडल करके अभी जस्ट आ ही रही हूँ, उसमें एक बच्चे का मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि वो, अगर उन लोगों ने पहले अवेयरनेस रखा होता, स्टैंडर्ड जब 1 में उसने किया था कुछ बदमाशी, 2 में किया था, तभी भी पेरेंट्स को लगा कि बदमाश है, बदमाश है, बस उसे एक बदमाश का लेबल दे दिया,
और फिर इग्नोर करते गए। एक स्कूल से निकाला गया, दूसरे स्कूल में डाला गया, उससे निकाला गया। अब वो आए हैं, जब नाउ ही इज इन स्टैंडर्ड 8। तो 8 तक तो ऐसे भी प्रमोशन दे देते हैं ना, आज पढ़ो आप मत पढ़ो। हम्म वो बच्चा का बदमाशी बदमाशी लायक नहीं था। तो पेरेंट्स को अवेयरनेस होना चाहिए ना कि एक बदमाशी होता है ना, जो हम लोग भी जानते हैं हम्म थोड़ा बहुत, या वो अलग। लेकिन आप बिल्कुल अलग टाइप का बदमाशी कर रहे हो, बिल्कुल अलग। तो आपको तो समझना चाहिए उसी वक्त, जब स्कूल 1 2 हम्म से आपको तो ये जो थोड़ा सा अवेकनिंग या थोड़ा सा अवेयरनेस नहीं है, जिसके कारण वो पूरा फैमिली आज सफर कर रहे हैं। और उसका प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, जो कि उनको पता ही नहीं था। और जब वो उन्होंने काउंसलिंग करवाई आज, तो वो स्टार्टेड क्राइम। बट स्टिल आई सेड कि अभी भी देर नहीं हुआ है, अब वो हो जाएगा ठीक। क्योंकि वो प्रॉब्लम उसको कहाँ से आई है, वो जो बच्चा है उसको प्रॉब्लम आई जब वो हम्म बच्चा माँ की कोख में था, वोम में था। आप समझ रहे हो? जब उसका हम्म फर्स्ट बेबी बहुत हेल्दी वेल्दी फाइन एवरीथिंग इज गुड, लेकिन जैसे सेकंड बेबी आया, तो मदर और फादर को चाहिए नहीं था। और जब वो कंसीव कर गए, उनको पता भी नहीं लगा, लेकिन जब पता लगा तो वो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे। लेकिन डॉक्टर ने अबॉर्ट नहीं किया, तो उन्हें रखना पड़ा। लेकिन वो 9 मंथ यही चाहेगी, मैं एक होता ना अनचाहा कि क्यों। अनवांटेड। that child, he catch that vibration of rejection, और वो वही पूरा दिखा रहा है पूरी तरह से। मीन्स वो जो हरकतें कर रहा है वो है अटेंशन के लिए। उसको हर वक्त आई एम रिजेक्टेड, आई एम ऑफ नो यूज, मैं आया ही क्यों। एंड नाउ जब वो सीरियसली वो डायलॉग दे रहा है ना कि अबाउट दैट आई विल गो टू स्कूल, तो वन डे आई विल नॉट कम, या फिर कुछ कर लूंगा इस टाइप का। तब मदर लोग को लगा, और किसी ने बताया कि एक काउंसलर से मिलो। तो ऐसी ही बातें हैं, जैसे कोई हाथ धो रहा है, तो वी ऑल वॉश हैंड, वी ऑल नो दैट। तो हैंड वॉश करना ठीक है, अच्छी आदत। बट अगर कोई दिन भर हाथ ही धो रहा है, तो फिर तो आपको अलर्ट होना चाहिए ना कि अरे इसको कुछ प्रॉब्लम है। सफाई करना अच्छी बात है, बट कितना हद तक। अब कोई आदमी बैठा है और वो इधर उधर देख ही नहीं रहा, बस क्लीन क्लीन एवरी टाइम। आप कुछ बात कर रहे हो, वो क्लीनिंग में लगा हुआ है। आप कुछ बोल रहे हो, वो क्लीन कर रहा है। दैट मीन्स कि उसको कोई प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम। अगर स्टार्ट हमने अवेयरनेस डाला किसी भी चीज को कि हम्म ये मान लो प्रॉब्लम नहीं भी है, आप एक काउंसलर के पास ले जाओ, वो बता देगा प्रॉब्लम है कि नहीं। बट आप और हम इग्नोर क्यों करते हैं? और जब हमें पता लगता है यस। कि यस, सो ये प्रॉब्लम हमारे प्रोफेशनल में भी है, प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत लोग जो है स्ट्रेस्ड में रहते हैं और स्ट्रेस कंडीशन में जॉब करते रहते हैं। तो वो भी बहुत सारे इस तरीके के प्रॉब्लम में चले जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है। एवरी टाइम दे फाइट, दे स्टार्ट आर्ग्यूइंग, दे स्टार्ट कंप्लेनिंग, और दे स्टार्ट मीन्स शोइंग दैट दे आर द वीकेस्ट पर्सन लाइक दिस। सो उनको पता नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर इन अ mental issue, that is a hidden mental issue. नाउ बिफोर कमिंग हियर आई रिसीव्ड अ हम्म कॉल। वो लड़का को पहले वो मतलब अभी वो भी तैयारी कर रहा था सिविल सर्विसेज का, बट किसी तरह समहाउ ही गॉट इनटू बैंक, है ना। हम्म बैंक में उसको गवर्नमेंट जॉब है, बैंक में गवर्नमेंट वाला। बट क्या है कि पहला पोस्टिंग उसको मिला है रूरल एरियाज में, गांव देहात में। हम्म स्ट्रगलिंग एवरी डे कंप्लेन, छोड़ दूंगा, ये करूंगा। तो आई टुक टाइम एंड आई जस्ट काउंसिल्ड एंड आई टोल्ड हिम कि एक काम करो यार, ये तो किसी ने आपको फोर्स नहीं किया था ना, आपकी चॉइस थी। तो फिर हम्म जब आप जा ही रहे हो उस वर्क पे, तो क्यों नहीं उसको खुशी से करते हो? ये मिस्टेक हम कर रहे हैं, हमें जहां से पैसा प्यार नहीं कर रहे हैं, हम उसको ही कोस रहे हैं एवरी डे। आप उसको प्यार करो। कंप्लेनिंग माइंडसेट है, हाँ, ऑलवेज उसके बाद कंप्लेनिंग। आपका कंप्लेनिंग रहेगा ना, तो वो जो जॉब है वो भी तो सुनता रहता है वाइब्रेशन। एक वो चला जाएगा, तो आपको फिर उसका इम्पोर्टेंस पता लगेगा। तो बहुत तरह के यस यस। केस, पीपल आर नॉट अवेयर। Anybody in our audience want to ask any question or communicate anything जो उनके थॉट में आ रहा है या उनके माइंड में आ रहा है, कुछ भी है तो वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। दिस इज एन इंटरेक्शन सेशन ऑल्सो, वेयर वी यस, आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, एंड नॉलेज शेयरिंग होता है। इससे बहुत सारी चीजें
हमें बहुत कुछ पता है या हम बहुत कुछ सोचते हैं कि सही है कि नहीं, लेकिन जब दूसरों से सुनते हैं तो उस पे बिलीव थोड़ा बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यस, माय थॉट इज क्लियर। हाँ, लोग भी ऐसे ही बिलीव करते हैं। तो एनी क्वेश्चन यू हैव यू कैन आस्क, रेज योर हैंड, आई विल अलाउ यू टू कम ऑन वीडियो, ऑडियो, whatever, and ask any question, because there are so many people, they are working in the same field, they are also working for depression and anxiety issues, and some are helping people for their self development। कहीं ना कहीं ये लाइफ कोचिंग से रिलेटेड ही सब्जेक्ट है जो हम लोग करते हैं। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एनी क्वेश्चन इफ एनीबॉडी वांट रिलेटेड टू कोचिंग और किसी भी चीज से, सो वी कैन टॉक ऑन दिस। यस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, बिकॉज अगर मेंटल हेल्थ की बात करें तो वास्ट है, वास्ट मतलब हर बहुत एक वर्ग, वास्ट सब्जेक्ट है। बूढ़े से लेके हर एक सफर कर रहा है। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनीथिंग यू कैन आस्क मी। तो अच्छा लगेगा। और चेतन जी तो बहुत अच्छा काम कर ही रहे हैं, बिकॉज मैंने यस। बहुत सारे हैं, स्टिल देर आर फ्यू हु विल स्ट्रगल। मतलब स्टार्टिंग में उनको थोड़ा सा लगेगा, बट ऐसा नहीं है। फिर जब लोग जान जाएंगे ना कि व्हाट इज हिज एक्चुअल मिशन, ही इज अ गिवर, ओके, आई एम अ गिवर। तो अगर आपकी वो टेंडेंसी जितना हमने लिया उससे कहीं ज्यादा दें, तो यू विल अचीव सक्सेस। यस, नोबडी कैन स्टॉप यू। यस यस यस। सो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि मैनी अ टाइम ऐसा होता है कि लोग प्रॉब्लम में रहते हैं, लेकिन उनको पता ठीक से, उनको मतलब अंदाजा नहीं होता वो कितने प्रॉब्लम में है। जब हम उनको उनका प्रॉब्लम बताते हैं और उनको बोलते हैं कि 3 मंथ्स का आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा, 4 मंथ्स का आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा, ये 1-2 दिन में ठीक नहीं होने वाला होता है, तो फिर वो एक तरीके से भागते हैं कि नहीं नहीं, अभी आप मुझे आज बता दीजिए, बाद में हम लोग देख लेंगे। तो किस तरीके से हम उनको कन्विंस कर सकते हैं कि नहीं, 3 मंथ्स 4 मंथ्स का प्रोग्राम ही आपके लिए बेस्ट होगा? दिस इज काइंड ऑफ क्लोजिंग विच रिक्वायर सम स्किल। तो ये किस तरीके से कर सकते हैं बाकी कोचेस? मीन्स कि वो जो इस तरह के लोग हैं ना, उनका क्या होता है, एक एक स्टोरी उसमें बताया गया कि एक डॉगी है, वो बैठा हुआ है ना, और वो बीच में रो रहा है ना, हल्का हल्का। तो किसी ने पूछा ये क्यों रो रहा है? तो किसी ने बोला कि उसे कांटा चुभ रहा है। तो वो बोला तो फिर ये क्यों नहीं उठता है? तो बोला इतना भी नहीं चुभ रहा है कि वो उठ के भाग जाए। तो हाँ। वही हम लोग सबका मतलब एक आदत हो गया कि जब तक चल रहा है तो हम चलाते रहते हैं, है ना। और कोई हमें दिखा हम्म। रहा है तो वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो वो जो पेन हो रहा है उससे आपको कोई मेंटर निकालना चाह रहा है तो वो निकालना होगा। आपको कन्विंस नहीं करना है उन्हें। आप उनका फी को, जैसे कि अभी जैसे मैंने केस किया, तो मैं उनके पास पैसे होते नहीं, एक्चुअली हर किसी का यही होता है कि पैसे नहीं। मैंने बोला कि अभी आप पैसे नहीं दे रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं अभी छोड़ दूंगी और ये जो बच्चे का बढ़ के बहुत हाई चला जाएगा, तब आपको हम्म। घर भी बेचना आपका। तब फिर आप क्या करोगे? उस बच्चे को बचाने के लिए तो आप सब कुछ करने को तैयार हो जाओगे उस वक्त। तो आप लोग हम्म। इस बात को नहीं समझते हैं। दिस तो इज वो कॉल्ड कॉस्ट ऑफ इनएक्शन, COI। तो पेरेंट्स ने समझा उसको। तो होते हैं हम्म। कुछ कुछ लोग धीरे धीरे समझते हैं, बिकॉज हम्म। एक्चुअली हमारे हमारे को कई अवेलेबल बार है। लोग इतनी देर से समझते हैं कि बहुत देर हो जाती है। दैट इज व्हाट। और ना बहुत हम्म। कुछ हमारे available है ऑनलाइन आजकल। तो लोगों को लगता है हम वहां से सीख लेंगे, बट वहां से सीखना नहीं है। वहां तो हर कोई अपना ज्ञान बांट रहा है, गलत सही। इसके चलते हम्म। और भटक रहे हैं। हमें हर यस यस। चीज। बार बार, कई बार हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसी एक मेंटर से सीखते हैं, फिर एक बार दूसरे मेंटर से सीखते हैं, एक बार तीसरे मेंटर से सीखते हैं। तो क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये समझने लगता है कि अब चौथे मेंटर से सीख लेंगे। हाँ, उसको वही तो है। किसी का, किसी एक का मेंटर को अगर हम लोग लेके चले लॉन्ग टाइम तक, देन इट वर्क्स। ऐसा नहीं है कि आप बार बार मेंटर कोचेस चेंज करते रहे, 10-12 गुरु रख ले और उनको हर दिन पूछते रहे, तो इससे नहीं होगा। एक मेंटर को आपको पूरी तरीके से फॉलो करना होगा, एक गुरु को, सो दैट कि कंप्लीट आप उस पाथ पे जब आप खुद चलना सीख जाएंगे, आपको खुद, आपका खुद का दिल का अंदर का दिया जल जाएगा, तो फिर ये इजी हो जाएगा।
तब फिर कंटिन्यू होगा। Like in my case, I was यस। very hard, all everything inside me. But when I got contact with you, both of you, you and Dulal जी, तो जब जो हमारा माइक्रो निश आया है ना निकल के बाहर, कि अभी तो अभी भी वो अवेयरनेस नहीं ना थी कि मैं सबसे ज्यादा हेल्प किसका कर रही थी, तो वुमेन का, हु आर स्ट्रगलिंग आफ्टर मैरिज, राइट? तो यू वेर टोल्ड मी दैट थिंग, तो वो एक स्पार्क हुआ मेरे अंदर कि यस, ये तो पॉइंट, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कभी कि इसमें तो मैंने मास्टर्स कर लिया है ना। तो वो मेरे लिए बहुत easy था। एंड देन व्हाट हैपेंड कि अभी सारा वीडियोस उसी से रिलेटेड बनने लग गया। तो यही होता है काम है कि हमें नहीं पता उसका इम्पोर्टेंस, लेकिन बहुत कुछ सिखा के जाता है हमें, और हमें लगता है कि नहीं, वी नो एवरीथिंग, आई एम फाइन विद दैट। नो, यस। प्योर एंड गुड मेंटर, क्योंकि ये भी नहीं है जरूरी कि सब मेंटर बहुत ही अच्छे होंगे, आपको भी थोड़ा चुन के लेना होगा। बिकॉज आजकल लोग, जैसे कि मैंने बहुत पहले भी ज्वाइन किया था, बट दे आर नॉट गिविंग टाइम एक्चुअली। ओके, सो इफ यू हैव सम डाउट, कहीं आप स्टक हो गए, तो आप उनको मैसेज करो, तो क्योंकि वो पैसे के पीछे भाग रहे थे कि कितने लोग आए, पैसे लो निकलो, नहीं वैसा भी नहीं। वैसे में लोगों का सब पे से विश्वास उठ जाता है कि नहीं? तो यस। आपको भी आग लगा के, सोच समझ के, और पूरा फेथ के साथ, जो चेतन जी ने बोला ना, एक, और उस पर विश्वास के साथ। जैसे कि आपने मेंटर की बात की, यहाँ तक तो मैं देखती हूँ कि लोग भगवान को भी बदलते हैं। आज इस भगवान को माना, काम हाँ नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि उनके यहाँ माइंडसेट इज नॉट राइट ना, क्लियर। दैट इज। कई बार हम लोग डॉक्टर बदलते रहते हैं, नॉर्मल। नहीं, आज ये किसी को स्किन की कोई प्रॉब्लम है तो कभी इसको दिखाया, 15 दिन में आराम नहीं आया तो ये डॉक्टर ठीक नहीं है, दूसरे डॉक्टर के पास चलते हैं। तो ये डॉक्टर के बदलने के कारण वो सालों साल वो बीमारी को लेके ढोते जाते हैं। फिर एंड भी उसी बीमारी के साथ होता है। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने किसी एक डॉक्टर पे कभी विश्वास ही नहीं किया, पूरा कोर्स किया ही नहीं, आधा पूरा कोर्स में ही कोर्स। हर चीज को चुन। यस। वेरी ट्रू। यस यस। सो ये जो जर्नी है, कोचिंग की जर्नी है, ये आपको कैसा लगा? मतलब ये डिफिकल्ट लग रहा है या आपको अब स्मूथ लगने लगा? नहीं, काफी स्मूथ लगने लगा। स्टार्टिंग में कोई भी चीज डिफिकल्ट लगता है, बट वंस यू आर रेडी फॉर इट, मैंने बोला ना, हर चीज माइंडसेट। तो नाउ व्हाट आई डू, लाइक सो मेनी पीपल ज्वाइन, है ना, जब मैं एक देती हूँ कि आज इस पर बोलना है, इस पे करना है, तो वो ज्वाइन करते हैं उसमें से। आप जो करना चाहते हैं लाइफ में कुछ, तो दे कम फॉरवर्ड। तो अब तो बहुत इजी हो गया, स्मूथ हो गया है। अब तो कुछ मीन्स उतना प्रिपरेशन भी नहीं है जितना इस स्टार्टिंग में फील्ड का रहता था। सबसे जो बड़ा बेनिफिट है, जो मैं फील करता हूँ, इस फील्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट है, दैट इज ब्लेसिंग्स। बहुत। ब्लेसिंग्स। मैं कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी मतलब कि जाता हूँ, तो कुछ लोग मिलते हैं, बोलते हैं अरे सर, मैं आपका वीडियो देखा था, बहुत ही अच्छा लगता है आपका वीडियो, बहुत पसंद आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये जो एक चीज है ना, ये छोटी सी चीज है लेकिन ये बहुत मोटिवेट भी करती है। एट द सेम टाइम आपको लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती है। अभी 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था अपने बच्चे के साथ में, वो अफर्मेशन वाला, आई एम स्ट्रांग, आई एम पावरफुल। तो कई जगह में जहां मैं जा रहा हूँ वहां बोल रहे कि वो बहुत सुंदर आपने काम किया, बहुत अच्छा लगा। तो उसका राइटिंग हमें भेज दीजिए, राइटअप भेज दीजिए, मैं भी अपने बच्चे को याद कराऊंगा। तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्टिंग द सोसाइटी, ये एक ब्लेसिंग सा फील होता है एवरी मोमेंट। Right. बहुत यस। बहुत इम्पोर्टेंट। जब मैं जाती हूँ कहीं, तो मेरा स्लोगन है एक, खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, यस। और वो भी किन ओके। कामों में जाते हैं, सकारात्मक कामों में। मतलब इतना वो फेमस हो गया कि मैं कहीं जाती हूँ, लोग दूर से ओके। ऐसे हाय नहीं, खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। जहां जाती हूँ वहां। अभी एक प्रोग्राम में मैं गई, तो वहां पे कुछ लोग हम्म आए और शौक है वो मैंने पूछा आप कौन, एक्चुअली मैं नहीं पहचानती थी। तो उन्होंने बोला कि हम्म। हम लंदन में रहते हैं और आपके वीडियोस हाँ। देखते हैं, हम आपके बहुत ओके। बड़े फैन। तो आई फेल्ट हाँ। एंड एवरीथिंग। तो और कितने लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि अच्छा आप जमशेदपुर में ही रहते हो। वो तो बिल्कुल। वो तो बिल्कुल। मीन्स मैं तो वो हम्म। बोलती हूँ कि आपने मुझे
क्या बोलते हैं ना, कहाँ से उठाकर कहाँ बिठा दिया। तो हाँ, एक गाना, हाँ, जमीन से उठा के पलक पे बिठा दिया, इस टाइप का, मतलब कि आम से खास बना दिया। खास बना दिया। तो ये एक एक सवाल है हमारे नॉलेज जी का, जस्ट मैं एक बार लेता हूँ उनका सवाल। मैंने आप नॉलेज जी, आप पूछ भी सकते हैं सवाल। सवाल है, हाँ कैन सर मैं मेडिटेशन। हाँ हाँ, पूछिए। हाँ मैडम, सवाल मेरा ऐसा है कि मेडिटेशन से मेंटल हेल्थ पर कितना असर होता है। मतलब हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो कितना बेनिफिट है मुझे। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मेडिटेशन का मतलब रियल मीनिंग अगर समझ में आया तब, ओके, तो बहुत अच्छा सवाल है। मेडिटेशन से आपको 100% मेंटल हेल्थ पर असर होता है। मेडिटेशन मीन्स व्हाट? आप क्या समझते हो मेडिटेशन का मतलब, पहले आप बता दो। जी मैडम, मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे कि साइलेंस में बैठना और अपने आप को ऑब्जर्व करना तो क्या चल रहा है। अच्छा, तो एज पर माई मेडिटेशन अंडरस्टैंडिंग। हिंदी में क्या बोलते हैं मेडिटेशन को? ध्यान ध्यान लगाना। ध्यान लगाना। तो मेडिटेशन मतलब ध्यान है। तो इसका अगर सिंपल मीनिंग जाने तो वो होता है कि हर एक काम को करते वक्त में ध्यान से, अवेयरनेस, जो मैं बात कर रही थी, तो वो अवेयरनेस हमको हम्म अगर आगे कौन हूं, तो वो तो हमें आया ही नहीं अभी तक। हम तो बॉडी कॉन्शियस है ना, सोल कॉन्शियस तो है ही नहीं कोई, या गॉड कोई, हु इज गॉड, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो व्हेन वी विल कम टू नो हु वी आर एंड हु इज ही, तो एक ध्यान ऑटोमेटिक लगेगा, और आपका वो हर एक फील्ड में दिखेगा। योर माइंड विल फील रिलैक्स। जो ओवर थिंकिंग या जो भी प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ की है, वो 100% सॉल्व हो जाती है इससे। बहुत अच्छा लेकिन सवाल मेरा है। ओके। एक सवाल, मेरा एक ये थॉट था कि मतलब ऐसा होता है जो जिन मतलब जो स्ट्रगल करते हैं डिप्रेशन से, वो मेडिटेशन नहीं कर पाते। हम्म तो वो सीवियर, अगर उनका स्टेज सीवियर है, मान लो वो दवाई पे है, क्योंकि उनको घबराहट हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है। नो मेडिटेशन हम सब करते हैं चेतन जी। ऐसा नहीं कि हम्म आप बैठो और आईज बंद करो, नो। इफ यू आर ड्राइविंग अ कार, तो वो भी तो मेडिटेशन हुआ ना, हम्म कि रास्ते में जा रहे हो, आप अवेयर हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, है ना, कहीं किसी को हम्म लग, तो वो जो अवेयरनेस है ना, वो वही तो ध्यान है। तो उनको अगर अब मेडिटेशन में पहले बार दवाई नहीं छूटेगा, धीरे धीरे क्या होता है ना, ब्रेन की जो शक्ति है ना, वो वीक हो जाती है। जैसे मान लो हमारी बॉडी, जब शक्ति वीक हो जाएगी, पावर, तो क्या होगा, जैसे ही सर्दी आया, हमको पहले कैच करेगा, है ना, या कुछ हम्म भी मौसम हो, सबसे पहले हम बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारा इम्यून कम है। वैसे ही मेंटल ब्रेन का इम्यून जैसे ही कम होता है, पावर कम होता है, तो हमको ये सब बीमारी हो जाती। ओवर थिंकिंग आप भी करते हो, मैं भी करती हूँ, ओके। जैसे सपोज मुझे बुक लिखना है एक, तो मैं तो दिन रात उस हम्म पर सोच, तो दैट इज इन हम्म पॉजिटिव। बट अगर कोई सोच रहा है कि हाँ क्या होगा, कैसे होगा, मेरे से तो नहीं होगा, तो वो हो गया नेगेटिव। तो क्योंकि ब्रेन वो हेल्दी नहीं है, तो उसको नरिश करना बहुत जरूरी है। थ्रू व्हाट? थ्रू हेल्दी हम्म इंफॉर्मेशन। तो आज सबसे बड़ा जो रोग का कारण है, वो है इंफॉर्मेशन, कि हम लोग सारा दिन क्या देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और वही हमारे दिमाग में जा रहा है। जैसे आप जंक फूड रोज खाओगे, तो क्या होगा, हेल्थ। डिटेरिएट हो जाएगा। हाँ, तो वैसे ही अगर आप हम्म न्यूज देख, आप बाहर जा रहे हो, किसी के भी मुंह से सुनो, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो हम्म रहा है, वो भी एग्जैजुरेट करके बोल रहे हैं, तो वो तो इफेक्ट बिल्कुल। पड़ रहा है ना, टेंशन। तो वही हमारा हेल्थ को डाउन कर रहा है। और मेडिटेशन में हम गॉड से कनेक्ट होते हैं, और गॉड को क्या हम्म बोलते हैं, पावर ऑफ एवरीथिंग, मतलब वो एक होता है ना, पावर हाउस है वो। तो जब आप पावर हाउस से कनेक्ट हो गए, पीस, वो होता है ना, विजडम, एवरीथिंग इज देयर। जैसे जैसे आप कनेक्ट हो गए, तो आप में वो एनर्जी, वो पावर आने स्टार्ट होगी, और आप हेल्दी होने लग जाओगे। मैं भी पहले नहीं थी, आई वॉज वेरी एंग्री पर्सन, यू वोंट बिलीव। जब मैंने वो मेडिटेशन स्टार्ट किया, एंड देन आई स्टार्टेड अफर्मिंग, आई एम अ पीसफुल सोल, और हर कोई हंसता था कि ये और पीसफुल। आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत मेहनत लगती है। फिर मैंने क्या किया, दीवार पे लिखा, आई एम अ पीसफुल सोल, बुक में लिखा, कॉपी में लिखा,
जहां जा रही हूँ मैंने सब जगह लिखा, किचन में लिखा जहां ज्यादा समय बीतता, क्योंकि मैं नहीं थी बट मुझे बनना था, तो मैंने वही लिखना स्टार्ट किया और जो मेडिटेशन किया। तो धीरे धीरे क्या हो गया, आज आज किसी की ताकत अगर नहीं है कि वो मुझे गुस्सा में देख ले, मैं नहीं सकता, गुस्सा दिला दे। मैं पर्सन हूँ ना। यस यस यस। तो तो नॉलेज जी आपको आंसर मिला और कुछ सवाल? सर मैडम एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, समझ में मुझे आया। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये तीन वर्ड का कुछ छोटा सा मीनिंग बता सकते हैं, डिफरेंस क्या है? स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। अच्छा, एंजाइटी और डिप्रेशन मीन्स, देखिए एक होता है स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस जानते हो, टेंशन जो थोड़ा बहुत होता है। या एंजाइटी उस लेवल हुआ। एंजाइटी में क्या होता है ना, जैसे आप किसी चीज को करना, आप डर गए कि कैसे होगा, ये डेडलाइन आ गया ऑफिस का, अब नहीं होगा। आज मुझे मान लो वीडियो पे आना था, अभी मेरे तो कुछ तैयारी नहीं है, मेरे हाथ पैर फूल रहे, पसीना आ रहा, सांस फूल रहा है, तो ये एक तरह का हुआ एंजाइटी, मीन्स आप डरे हो, आपको समझ नहीं आ रहा, ओके आपको माइंड शॉक्ड हो रहा। लेकिन डिप्रेशन इसका भी लास्ट स्टेज है, थर्ड स्टेज, जिसमें कि आप ओके पूरी तरह से, ओके, नाउ यू डोंट फील लाइक कि आपको बाहर निकलना भी है घर से, आपको बिल्कुल ही नहीं है कि मेरे से होगा। एंजाइटी में आपको डर है, मतलब हो भी सकता है लेकिन डर है। और डिप्रेशन में आपने गिव अप कर दिया कि ये मुझसे नहीं होगा। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो गया, आप किसी से मेल जोल नहीं करोगे, अंधेरा में रहना पसंद करोगे, बाहर नहीं निकलोगे, चिड़चिड़ करोगे, गुस्सा करोगे। तो ये फर्क, और डिप्रेशन भी बहुत तरह के हैं, अलग अलग लेवल के हैं। ठीक है। जैसे एक फॉर ओके थैंक एग्जांपल, यू। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, किसी एग्जाम्स तो होते हैं बहुत सारे, सभी बच्चों के एग्जाम्स होते हैं। तो एक बच्चा जो होता है वो स्ट्रेस लेता है, मतलब एग्जाम है तो थोड़ा सा उसको डर लगेगा कि कल एग्जाम में आज पढ़ना पड़ेगा, वो कॉपी लेकर के बैठेगा, कोशिश करेगा पढ़ने का। तो हो सकता है कोशिश कर रहा हो, कुछ पढ़ पाएगा कुछ नहीं पढ़ पाएगा, बट वो स्ट्रेस लेता है। वो एक स्ट्रेस लेता है कि नहीं मुझे कल एग्जाम है, वो स्ट्रेस लेता है, दैट इज अ स्ट्रेस। और स्ट्रेस भी दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव स्ट्रेस, एक नेगेटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस में क्या होता है कि वो स्ट्रेस के साथ में काम भी कर रहा है, वो स्ट्रेस भी लिया है लेकिन वो काम करने से नहीं रुका हुआ है, मतलब कर्म कर रहा है। स्ट्रेस विथ वर्क इज पॉजिटिव स्ट्रेस, स्ट्रेस विथआउट एनी वर्क। सॉरी टू इंटरप्ट, बट स्ट्रेस इज नॉट पॉजिटिव एट ऑल। ये जो वर्ड आजकल सुनने में आ रहा है ना, पॉजिटिव स्ट्रेस, ये हाँ नहीं है। स्ट्रेस है तो वो नेगेटिव ही है। हाँ, तो आपके उस अपने दादा परदादा लोगों को किसी के मुंह से स्ट्रेस वर्ड सुनते थे, क्या वो काम नहीं करते थे? या हम ही, आप अपने बचपन में, मेरे बचपन हम्म, में चले जाए, कभी बोला कि स्ट्रेस होता है हमें? नहीं वो वो अलग, हिंदी में बोलते थे। वो अलग चीज है, हाँ वो स्ट्रेस। लेकिन हाँ आज इधर क्या करेगी, अगर वो बच्चा रिलैक्स है तो उसको स्ट्रेस नहीं हो रहा है, कल एग्जाम में देखो इस कितना रिलैक्स है, उसको स्ट्रेस। जबरदस्ती स्ट्रेस किया जाता है। पॉजिटिव हो ही नहीं सकता चेतन जी। ये भी एक तरह का बोला जा रहा वीडियोस वगैरह में, हम लोगों ने सुन लिया है। वो एक होता है जैसे हाँ डेडलाइन गया, तो आपको वो अवेयरनेस है कि मुझे ये करना है, तो उस पर हम बहुत वर्क हार्ड करते हैं, बट दैट इज नॉट स्ट्रेस, एक तरह का बट प्रेशर है, समटाइम्स यू फील अ प्रेशर, प्रेशर फील करते हैं। स्ट्रेस नहीं हम्म है। तब आता है, ओके। पावर कम होता। आई ऑलवेज से कि स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर बाय रेसिलियंस, है ना? प्रेशर बाय रेसिलियंस मीन्स इनर पावर। तो जो प्रेशर है ना वो बाहर से आता है, जैसे आपका फैमिली मेंबर, आपके ऑफिस, आपका नेबर, आपका वर्क, मतलब बाहर से। तो उसको हम हैंडल नहीं कर सकते हैं, उसको हम रोक नहीं सकते आने से। बट बाय, जो बाय रेसिलियंस था ना, इनर पावर, उस पर हम्म हम वर्क कर सकते हैं। जैसे मैंने किया, देखिए वही फैमिली मेंबर्स है मेरे आज भी, सारा कुछ वही है, वही घर वही माहौल। बट एक टाइम था जब मैं डिप्रेस थी, ठीक है, इवन दैट वाज द स्टेज व्हेन आई वांटेड टू गिव अप माय लाइफ, यू वोंट बिलीव, ठीक है। और आज भी वही है, बट मैंने क्या क्या अपने ऊपर मेहनत करके रेजिलियंट इन डेवलप किया। एक्सपीरियंस को बढ़ाया। तो अब स्ट्रेस है ही नहीं, घट चुका पूरी तरह, क्योंकि हम प्रेशर को आने से कभी नहीं रोक सकते, वो तो लाइफ का एंड तक
किसी न किसी फॉर्म में आएगा ही। ओके। यस यस यस। फिर यही अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो दैट बिकम्स एन एंजाइटी। एंजाइटी एंड देन इट बिकम्स डिप्रेशन लास्ट। जब वो इन एक्शन मोड में चला जाता है, जब वो कोई भी एक्शन नहीं ले पाता, तो फिर वो डिप्रेशन मोड में चला जाता है। लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल तो समझ में आएगा, ठीक है। लाइक एक लेडी है मेरे पास आई, वो चेन्नई की थी, तो उनको उनका एक बेटा था और उसको मीन्स उसको ना हर वक्त डर लगता था, उस लेडी को, मदर को, कि बेटा को कुछ हो तो नहीं गया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। मतलब वो सो नहीं पाती थी रात भर। बेटा बहुत हम्म अच्छा था, लेकिन वो बाहर कहीं रहता था। लेकिन इसको क्या है, फादर भी है और मदर भी है, लेकिन फादर को नहीं हो रहा, मदर को क्या है, एनी टाइम उसके चलते वो स्लीपिंग पिल्स भी खा रही है, नींद नहीं आ रहा, और उसको पसीने नहीं होता, नींद में पसीना निकल रहा, हम्म हाथ पैर फूल जा रहे हैं, थॉट्स आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। तो वो था एंजाइटी का स्टेज, ठीक है। लेकिन अगर वो ट्रीटमेंट नहीं करवाती तो क्या होता, धीरे धीरे वो उनका कोई बात सुनता नहीं, बोलता ऐसे ही होता है, तुम्हारे मन का वहम है, छोड़ो ना। वो तो समझ रही थी ना कि उससे क्या सफर कर रही है। तो अगर उनको छोड़ दिया जाता तो धीरे धीरे वो क्या करती, वो गिव अप कर देती, वो उसी नेगेटिव थॉट के साथ हम्म जीने लगती। फिर वो क्या के अंदर रखती, फिर वो लोगों से बात बंद कर दे देती, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाता उसका, और वो डिप्रेशन तक पहुंच जाती। लेकिन एंजाइटी था, उसने काउंसलिंग करवाया तुरंत, मतलब बहुत कम टाइम में। और वो भी उनका भी चाइल्डहुड से रिलेटेड था, क्यों उनको डर घुसा, ठीक है, बचपन में बेटा किडनैप हो गया था, तो वो स्टोरी था। लेकिन क्या है कि वो तुरंत उससे रिकवर हो गए, आज आज इतने खुश हैं, वो इतने हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। तो वो क्या है, हम लोगों हम्म। ने पहले, तो इसीलिए मैं वो अवेयरनेस बोल रही हूँ कि लोगों को कि अवेयर रहो। लेडीज को वही बोलते हैं कि घर में लोग बोलेंगे कि अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। आपको पता है ना कि आपको मेंटली कितना वो परेशान कर रहा है, तो आप स्टेप लो, आप किसी भी तरह लो, फीस देना नहीं देना छोड़ो, पहले आप कांटेक्ट करो। श्योर श्योर। एंड इट इज नॉट रिलेटेड टू मीन्स पैसा। एक बोलते हैं ना, लोगों का कंसेप्ट है कि उसके पास बहुत पैसा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लाइफ में। लेकिन मेरे पास ऐसे केसेस आ रहे हैं जो कि हर तरह से, एक होता है ना, हम्म। हर तरह से वाले हैं, सब कुछ अवेलेबल है, अबंडेंस है। आप बोल सकते सक्सेसफुल, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत कुछ है, 10 नौकर चाकर है, कुक है, सब है, बट स्टिल हम्म। डिप्रेशन में। कुछ होगा कारण, है ना। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं आज, हम सब, ये एक मैसेज है मेरी तरफ से, बिल्कुल, अगर हम लोग एक हाँ। हम सब बाहर बटोरने में लगे, नहीं होता हम्म ये अचीव, बट उसके कारण हम किस रास्ता से जा रहे हैं वो भी हम भूल जा रहे हैं, क्या क्या चीज पीछे छूट रहा है वो भी भूल जा रहे हैं। तो उसके चलते क्या हम्म होता है, इफेक्ट आता है, ये जब आपके पास सब कुछ है, आप पीछे मुड़ के देखो कि कुछ भी नहीं बचा। सबसे पहले तो हम्म इमोशनल सब गया। अब आपके पास वेल्थ है, आप क्या करोगे उस वेल्थ का, जब आप मेंटली फिट नहीं हो, आप यूज ही नहीं कर हम्म। सकते उसको, क्या करोगे। अच्छा। तो इसीलिए वी हैव टू मूव ऑन। पैसे कमाना बहुत जरूरी है, मैं बोलती हूँ लोगों को, बट इतना ही जितना आपका नीड है, उसके बाद वाला से आप हेल्प करो ना लोगों की। हम्म। सेटिस्फेक्शन। Anybody want to ask any question regarding coaching or regarding any problem with what we face in coaching, और जो भी डिस्कस हमने किया अभी तक, इससे रिलेटेड कोई भी आपको सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। यस, एक और इम्पोर्टेंट है कि कोचिंग बिजनेस में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, राइट। ये है एक क्वेश्चन जो नहीं पूछ रहे होंगे लोग, क्योंकि उनको रिस्क लेने से बहुत डर लगता है कि पैसा चला गया तो, नहीं कुछ हो गया तो, है ना, ये होता है। लेकिन अगर आप सोफा पे पड़े हो और टीवी देख रहे हो, मजा कर जिंदगी, तो वो उससे बेकार है कि आप रिस्क ले लो ये सोच के कि कहीं तुक्का लग, कहीं चल गया तो और इसका एक और बेनिफिट ये है कि कोचिंग में जब आप आते हो ना, तो सामने वाले को इम्पैक्ट आप दो या नहीं दो, सबसे पहले तो आपकी जड़ें मजबूत होती है। टाइम लगता है, बट 1 ईयर 2 ईयर हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट ना मिले, लेकिन आप 1 ईयर 2 ईयर में आप ये देखोगे कि आप अपना किस लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हो। मतलब यू बिकम अ पर्सन की, वो जो आपने बोला ना, रिजिलियंस, तो वो रिजिलियंस लेवल बढ़ जाता है।
आप एक थैंकफुल इन्वायरमेंट में जीने लगते हैं, ऑलरेडी यू आर थैंकफुल, ग्रेटफुल, आप लव एंड जॉय के जोन में लाइफ जीते हो। जहां आप कंप्लेनिंग मोड में लाइफ जीते रहते हैं नॉर्मल लोगों के साथ, जब आप कोचिंग में इन्वेस्ट करते हो, जब किसी मेंटर के साथ इन्वेस्ट करते हो, तो डेफिनेटली है कि आप इस मिड जोन या लो जोन से आप एक हाई लेवल एनर्जी, हाई लेवल ऑफ जॉय, लव, हैप्पीनेस वाले जोन में ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगते हो। तो दैट ऑटोमेटिकली जो है, ये कोचिंग जर्नी जो है आपको ट्रांसफॉर्म करती है, और इतना फास्ट ट्रांसफॉर्म करती है कि आप अगर इस जर्नी में अगर 1 से 2 साल टिक जाते हो, तो आप अपने कलीग से 10 साल आगे बढ़ जाते हो। 10 साल आगे बढ़ जाते हो उन लोगों से जो आपके साथ ही थे। बाद में वो, उनको समझ नहीं आता कि ये चेंजेस इनके अंदर कैसे आ रहा है, लेकिन दिस बिकम्स योर हैबिट। ये हैबिट। पॉजिटिव सोचना, लोगों को पॉजिटिव गाइड करना, लोगों को सपोर्ट करना, ये आपकी हैबिट बन जाती है, और स्लोली स्लोली ये कंपाउंडिंग वे में आपको बेनिफिट देती है। कंपाउंडिंग वे में पैसा तो बिल्कुल मैं बोलूंगा एकदम लोएस्ट पॉइंट है, बट इससे कहीं ज्यादा हर एरिया में आपको हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअली, पर्सनली, हर तरफ में आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ देती है। तो और बहुत सारे स्किल सीखते हैं आप, बहुत सारी चीजों को सीखते हैं, यू बिकम वेरी वेल स्किल्ड। अभी जैसे मैं शुरू से बता रहा हूँ, ऑफर क्रिएशन सिखा रहा हूँ, या फिर लीड जनरेशन सिखाता हूँ, या हाई टिकट क्लोजिंग सिखाता हूँ। ये सारी स्किल्स जो है लोगों के अंदर में 0.1% भी नहीं है। दे डोंट नो हाउ टू टॉक। मतलब एक पेन भी एंड अगर किसी को बोल दिया जाए कि कैसे बेचना है, तो दे डोंट नो। यू आर गिविंग ओनली व्हेन यू आर लर्निंग, यू हैव लर्न फ्रॉम समवेयर। तो इसमें सबसे यस। अच्छी है, हम भी सीखते जाते हैं साथ में बहुत कुछ, और सेल्फ हम्म। कॉन्फिडेंस का बूस्ट अप होता है अपना। तो मीन्स दैट इज व्हाट आई टोल्ड ना, कि हम्म। करना नहीं है कभी भी इन्वेस्ट। ऐसे भी हम बर्बाद करते हैं पैसा इधर उधर। तो आपके अंदर अगर हम्म। कुछ है, मेरे अंदर में एक हैबिट अंदर से था कि मुझे हेल्पिंग नेचर था, है ना। तो अगर मैंने उसको अब कोचिंग बिजनेस में डाल के और उससे पैसे आ रहे हैं, तो क्या गलत हो रहा है। मेरे अंदर जो हम्म। पोटेंशियल, मैंने उसको यूज किया, सब कुछ बिल्कुल लेते बिल्कुल। हुए। कई बार लोग पैसा लेने से बहुत हिचकते हैं। मैं सिंपली हम्म, एक चीज बोलूंगा, अगर आप जॉब में जा रहे हो और आपको मंथली में सैलरी नहीं आ रहा है, तो हम्म, आप अपने पेट कैसे भरोगे, या अपने फैमिली का पेट कैसे भरोगे? इन द सेम मैनर, इफ यू आर कोचिंग एंड सर्विंग समवन, तो अगर आप कोचिंग और सर्विंग में पैसा लेने में हिचकिचा रहे हो, तो सिंपली आप सैलरी लेने में हिचकिचा रहे हो, तो आपका पेट कैसे भरेगा, या आपको जो भी चीजें अपनी लाइफ के लिए चाहिए, कहाँ से मिलेगा, और कौन सी जगह से मिलेगा? व्हाट यू आर डूइंग, मेक इट अ प्रोफेशन एंड एंजॉय इट। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मैं भी पैसा नहीं लेती थी, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि जब मैंने पे किया, तो ये बहुत पॉइंट है, एक जगह मुझे ऐसा स्ट्राइक किया है। जब मैंने पे किया, तो मुझे भी फिर लेना, मीन्स हम्म। मैंने सीख, है ना। तो सीख जब लिया, तक आप यस। लोगे नहीं, तो आप कहाँ हम्म। से आप लोगों से, तो Last day I दैट was मीन discussing on this topic, even you have to become a buyer first. You have to become a high ticket buyer first. Then high ticket uh, people will automatically will be attracted because you are a buyer. अगर आप एप्पल की सीड है तभी एप्पल होगा। अगर अट्रैक्ट करो। आप अगर टोमेटो की सीड है, तो वहां से एप्पल कभी नहीं होगा। यस यस। तो आई थिंक हमने बहुत डीप डिस्कशन किया आज, बहुत अच्छा अर्लियर लगा आप लोगों। फ्री ऑफ कॉस्ट, अर्लियर मैं बहुत 2-3 साल तक मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट किया, है ना। बट डिफरेंस मैं बता दूं, ठीक है, कि क्या हम्म। होता है। कॉस्ट आप कर रहे हो, अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, बट आप ना एक टाइम के बाद एग्जॉस्ट हो जाओगे, ठीक है। बट जब आपको मिलता है कुछ, एंड तब क्या होता है, आपकी वैल्यू जैसे मेरी बढ़ते गई, मेरा फी भी हाई हो गया, तो क्या हो गया, अब वैसे लोग अप्रोच करे जो रियली में दे आर इन नीड। अदरवाइज कोई भी फोन घुमा दे रहे, क्योंकि फ्री का है, और उनका ठीक भी नहीं होता है, क्यों, क्योंकि उन्होंने कुछ पे किया ही नहीं है, तो उनको समय तो का टेंशन भी नहीं है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पे भी करो अच्छा सा, और फिर लो भी अच्छे से, क्योंकि आप कुछ अच्छा से। दोगे। एकदम। और मैं तो ठीक करने के बाद ही बोलती हूँ कि तब दो। इतना कॉन्फिडेंस है।
Yes, yes. Anybody want to share feedback about this discussion? कुछ आपका क्या टेक अवे है आज के इस डिस्कशन से, इस पॉडकास्ट से? Share your feedback live if you want to, or you can chat on or give your feedback in the group also, in WhatsApp group. Okay. अगर ये सेशन अच्छा लगा, we will again continue tomorrow also, and another a beautiful session we have, and tomorrow and another a very impactful guest is going to come, that is Kriti Srivastava. She is going to help you in very deep way. She is going to teach you the very important topic and the things how she is transforming people through their handwriting. How she Okay. is helping people through their handwriting, and how she is transforming moms. So this is going to be a very, very beautiful, interactive, and lots of learning we are going to get, and we will also learn how she close high ticket for handwriting services through handwriting, transformation through handwriting. So lots of great things going to come tomorrow. Today I will just start our high ticket closing workshop because we इतना अच्छा डिस्कशन हो रहा था कि हम उसी में डूब गए, बट हमारा लर्निंग सेशन भी हमें कंटिन्यू करना है. थैंक यू सो मच ममता जी. इट्स अ वेरी वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल to have you to share this kind of insights that has transformed and given us a new way of living life. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yeah. Anybody want to share feedback? They can share feedback here or feedback in our WhatsApp group. Definitely, it will make us more excited to give you more services. Just 1 second. Yeah. So, just I will share today's slide. Last day we had discussed in deep on lead generation, high ticket lead generation. Today we will go deep on the topic high ticket closing. Just 1 second. Is my screen visible? Yes. Okay, thank you. Yes, we were going. ये सारा चीज कवर कर लिया है. Health, wealth, relationship, lucrative micro niche, peculiar, blue ocean niche, emotions, relationship coach, offer creation, irresistible offer creation, highly desirable, highly perceivable, easy to get, believable, credible. Okay. Okay, this is 7 strategies to attract high-end premium clients. Got it. Last day we were discussing on this. Less is more. Invest in yourself first. Build personal connection with people. Engage with their content. Reply, comment, appreciate, attend events, build networks, have your business card, invite for one-on-one free sessions, show them what you do, share your testimonials once a week,
build your authority, articles, books, blogs, ebook, give 99% of value and charge for handholding. Yes, you attract the kind of client you are. The business is just reflection of you. You can't get rich by looking poor. So these all things we have covered yesterday, the last day. Today is the day 4 and we will go in deep on high ticket closing. So first of all, the question is, what is high ticket closing? Yeah. So read with me. It is a skill set that can help you to generate high income. In any field you are, in any area you are, if you do not know how to close people, you cannot make transaction, because transaction is only done when closing is done. When the closing is done. So it is a skill set. Simply this is a skill set and we have to practice it and become master on it. हमें इस स्किल सेट को सीखना है और इसी में मास्टर होना है. जो जितना मास्टर होगा वो इतना इनकम बना पाएगा. क्यों? क्योंकि वो उतने लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म कर पाएगा, उतने लोगों को चेंज कर पाएगा. सो थोड़ा सा समझते हैं डीपली कि पीपल व्हाई, 5 रीजंस व्हाई पीपल बाय. इसको थोड़ा सा डीपली समझते हैं कि क्या 5 रीजन है पीपल को खरीदने के लिए. पहला है नीड. उनको जरूरत है कि नहीं. अगर ऐसे लोगों के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो जिनको जरूरत नहीं है, तो ये कभी भी क्लोजिंग कभी नहीं हो पाएगी. तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि नीड है कि नहीं है. अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक मर्सिडीज बायर को एक ऑल्टो देंगे तो वो कभी खरीदेगा क्या? एक मर्सिडीज बायर को एक ऑल्टो देंगे तो नहीं खरीदेगा. सेम वे में अगर एक ऑल्टो बायर को एक मर्सिडीज पेश करेंगे तो भी वो नहीं खरीदेगा. तो यू हैव टू मैच द पर्सन. आप जिन अपने टारगेट ऑडियंस कौन है, कितना है उनके पॉकेट में, क्या वो पे कर सकते हैं, वो अगर आपको पता है उसके हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करना है. ना कि आप अपने प्रोडक्ट को अपने हिसाब से डिजाइन कर लो और आपके टारगेट ऑडियंस उतना कैपेबल नहीं है. आप अगर उसको डिसाइड कर लेते हो कि मैं 5 lakhs का करूंगा और आपके टारगेट ऑडियंस है 5 lakhs कमाने वाले साल में, तो इट इज डिफिकल्ट टू क्लोज इन दैट वे. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि उनका नीड कितना है, कितनी उनकी नीड है. अगर कोई रिलेशनशिप कोच है तो उनके टारगेट ऑडियंस अगर वुमेन है जो रिलेशनशिप में इशू फेस कर रहे हैं, तो कौन क्या इशू फेस कर रहे हैं और उसमें उनको आपके प्रोडक्ट की कितनी नीड है, ये बहुत जरूरी है. नीड होगी तो डिमांड होगा. जब नीड है बट फिर भी लोग नहीं खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सेंस ऑफ अर्जेंसी इज मिसिंग. सेंस ऑफ अर्जेंसी मिसिंग. कई बार क्या होता है कि डॉक्टर के पास गया कोई, डॉक्टर ने उन्हें बताया कि यह आपका जो हार्ट है ना उसका जो वेन है वो जाम है. अब वो पूछेगा कितना जाम है, तो डॉक्टर बोलेगा हाँ 2 जाम है 3 ओके है. तो वो बोलेगा अभी चल सकता है क्या? तो अगर डॉक्टर बोलता है हाँ ये कुछ दिनों चल सकता है, तो क्या हुआ? वो फिर बोलेगा ठीक है, और फिर आगे वो बढ़ेगा नहीं, वो जस्ट पिल्स ले लेगा, दवाई लेगा और इस तरीके से चलता रहेगा. लेकिन अगर डॉक्टर उसे बताता है कि नहीं दिस इज वेरी सीरियस, 2 गया है तो तीसरा भी जा सकता है, और अगर तीसरा चला गया तो फिर आपकी जान जा सकती है. सो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज क्रिएटिंग एन अर्जेंसी कि आपको ऑपरेट करा लेना चाहिए, स्टंट लगा लेना चाहिए, सिंपल. तो हमें डॉक्टर से सीखना चाहिए कैसे अर्जेंसी क्रिएट करके उनको सॉल्यूशंस तक लेके जाते हैं. क्योंकि उन वो तो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको क्या पता, वो सफर कर रहे हैं और उनको पता भी नहीं है. अगर उनको पता होता तो वो उस स्टेज में जाता ही नहीं. डिजायर, समटाइम्स डिजायर वर्क वेरी बेटर. कि डिजायर नहीं है तो लोग नहीं खरीदते. शौक बड़ी चीज होती है. शौक बड़ी चीज होती है. कई बार लोग शौक से महंगी गाड़ियां खरीदते हैं, शौक से महंगे घर खरीदते हैं. दिस इज अ काइंड ऑफ डिजायर. तो डिजायर इज ऑल्सो अ फैक्टर
Why people buy? Most of the people buy iPhone and only for desire कि भाई मेरे हाथ में iPhone होगा. So if you create a product जो लोगों की डिजायर में है, जो लोग पसंद करना चाहते, जो लोग लेना चाहते हैं, या इफ यू क्रिएट अ कोर्स जो लोग सीखना चाहते हैं, जैसे एआई नाउअडेज. एआई आज के डेट में क्या है, लोग सीखना चाहते हैं क्योंकि लोगों को पता लग रहा है कि एआई सीख के हम बहुत सारे काम फास्ट वे में कर सकते हैं, हमारा प्रमोशन हो सकता है, या हम अपना जो भी काम कर रहे हैं उसको बहुत सुंदर तरीके से कर सकते हैं. तो लोग एआई सीख रहे हैं और एआई के कोर्सेस धड़ल्ले से बिक रहे हैं. गॉट इट. तो वहां पे क्या फैक्टर है, डिजायर फैक्टर है. तो टाइप इन चैट बॉक्स डिजायर. इफ दिस स्पेलिंग इज करेक्ट, then type the same spelling. If it is not correct, then type the correct spelling. अगर ये स्पेलिंग सही है तो लिखिए यस. अगर गलत है तो मुझे सही स्पेलिंग बता दीजिए, मैं करेक्ट कर लूंगा. टेल मी, इज दिस करेक्ट? इज दिस स्पेलिंग करेक्ट? डाउट हो रहा है? इज दिस स्पेलिंग करेक्ट? गॉट इट. सो दिस इज अ डिजायर. आप डिजायर क्रिएट करो, ये स्पेलिंग करेक्ट है मुझे पता है. मनी. तो वही मैंने जो बोला कि आपके टारगेट ऑडियंस कितने अफोर्ड कर सकते हैं वो आपको समझना है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना प्राइसेस सेट करना है. सो हम लोग कई बार बोलते हैं कि प्राइस कैसे सेट करें कोर्सेज का. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो चीज आप उनको देना चाह रहे हैं वो उनका क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, और उस प्रॉब्लम के लिए वो कितना पे करने के लिए कैपेबल है, उनके हिसाब से आपको अपना प्रोडक्ट डिजाइन करना है. दैट इज इंपॉर्टेंट. सो हम लोग अभी समझ रहे हैं ट्रस्ट. ट्रस्ट इज अ मेजर फैक्टर. ट्रस्ट इज अ मेजर फैक्टर. 99.999% सेल्स इसलिए नहीं होते क्योंकि ट्रस्ट की कमी होती है. कहीं ना कहीं एक सिंपल छोटा सा डाउट भी सेल को खत्म कर देता है. तो ट्रस्ट डेवलप करना, ट्रस्ट बिल्डिंग जो है ये इंपॉर्टेंट है. तो ट्रस्ट है तभी पीपल खरीदते हैं. और इट 6 सीक्रेट्स ऑफ हाई टिकट क्लोजिंग. हम लोग थोड़ा सा और डीप जाएंगे एंड देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द 6 सीक्रेट्स ऑफ हाई टिकट क्लोजिंग. गॉट इट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अटैच नहीं होना है सेल के साथ. सेल्स इज डिफरेंट एंड आई एम डिफरेंट. गॉट इट. सेल्स इज डिफरेंट एंड आई एम डिफरेंट. Whatever I am getting in my life is from God, not from our clients and all. Got it? तो ये कंसेप्ट माइंड में रखना है. Whatever I am getting is from God. So be selfless. वहां बिल्कुल सेल्फलेस है बिकॉज यू आर गोइंग टू हेल्प देम. बिकॉज जब आप सेल्फलेस होते हो तो बेस्ट हेल्प कर पाते हो, उनको बेस्ट सॉल्यूशंस दे पाते हो. जहां आप उसको मनी के पैरामीटर में तौलने लगे तो कई बार क्या होता है, सॉल्यूशंस अचीव नहीं होता है, रिजल्ट अचीव नहीं होता, या सामने वाले के साथ ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता. तो जैसे सिंपल है कि थोड़ा भी सेल्फिशनेस है, सामने वाला फील कर लेता है कि यहाँ पे सेल्फिशनेस है. तो बी सेल्फलेस फर्स्ट. थिंक वट एवर आई एम गोइंग टू गेट इज फ्रॉम गॉड ओनली, एंड दिस पर्सन इज अ जस्ट मीडियम of God, and I need to help him through complete my heart. Any question or any doubt, or you, if you like it, this understand. Being selfless makes you more confident. Being selfless makes you more confident and more closing becomes more easier. Got it? Because जब आप selfish होते हो या तो आपका माइंड जब थोड़ा भी अपने बारे में सोचता है, देन यू आर नॉट कॉन्फिडेंट. You shiver, you feel means for anxiety, stress, ये सब चीजें आने लगती है. बट जब आप सेल्फलेस होते हो तो आप रिलैक्स होते हो.
and then closing becomes smooth because other persons feel yes, it is their need, उनको जरूरत है या उनका डिजायर है या they start trusting you. Got it? So selfless is a basic secret, or this is the most difficult. As a human, being a selfless, being a selfless person is kind of a means भगवान हो जाना, ह्यूमन होते हुए भगवान हो जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं सेल्फ चीजें आ ही जाती है मन में. सो फॉर बीइंग अ हाई टिकट क्लोजर, आपको वो स्थिति अचीव करनी है कि हम बिना सेल्फ के सोचे सामने वाले को हेल्प करना सीखे. दैट इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट. सेकंड इज बी प्रिसाइज एंड क्लियर. बी वेरी प्रिसाइज एंड क्लियर इन योर मैसेज. बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैसेज लोगों को समझ नहीं आता. अब जितने भी एड्स देखे होंगे, जो भी एड्स देखे होंगे, 2 वर्ड्स का ऐड होता है. मीन्स 2 वर्ड्स पे टिका होता है, 2 से 3 वर्ड्स पे. वो 2-3 वर्ड्स एकदम प्रिसाइज और क्लियर होना चाहिए. गॉट इट? जैसे आप देखोगे कोई भी वोटिंग कैंपेन होता है तो वहां पे वो लोग नारा यूज करते हैं. तो व्हाई दे यूज नारा? क्योंकि वो बहुत प्रिसाइज वर्ड में क्लियर मैसेज दे पाते हैं. आपका साथ आपका विकास, सिंपल. सो ये क्या है? आपका साथ आपका विकास, इस पे लोगों को एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि भाई हमारा साथ हमारा विकास, तो हम साथ देंगे तो हमारा ही विकास होगा. तो बी प्रिसाइज एंड क्लियर इन योर मैसेज. बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैसेज, मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ. मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो अपने फेसबुक प्रोफाइल में हजारों चीज लिखते हैं. मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ. तो दे आर कॉम्प्लिकेटेड पर्सन, आई एम टेलिंग यू. दे आर नॉट सिंपल. अगर आप उनसे कनेक्ट करोगे तो थोड़ी देर तक आपको समझ नहीं आएगा कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं. एंड दैट्स व्हाई पीपल गो अवे फ्रॉम देम, बिकॉज दे आर नॉट प्रिसाइज एंड क्लियर. दे डोंट हैव क्लैरिटी व्हाट दे डू. They are doing lots of things. So you should have one particular main micro niche. उसके अराउंड आप चल सकते हो, बट यू शुड हैव वन मिशन, वन विजन. मेक इट वेरी सिंपल, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज सिंप्लिसिटी विंस हार्ट. सिंप्लिसिटी विंस हार्ट. ठीक है? बहुत ज्यादा ये करने, कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा डेकोरेशन करने के चक्कर में हम चीजों को खराब कर देते हैं. बट अगर हम सिंपल रखें तो वो ज्यादा अच्छा लगता है. तो वी शुड, जो भी मैसेज है या ऑफर है उसको एकदम सिंपल वे में रखना है. यू हैव टू मेक इट वेरी सिंपल. गॉट इट? सो बीइंग अ सिंपल, आस्किंग राइट क्वेश्चन, ये ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि लोगों को क्वेश्चन पूछना ही नहीं आता. क्वेश्चन पूछना ही नहीं आता. आस्किंग राइट क्वेश्चन इज द बेसिक थिंग. क्योंकि 99% लोगों को तो बात ही नहीं करने आता कस्टमर से. कस्टमर कनेक्ट होता है तो वो कांपने लगते हैं. उन्हें खुद समझ में नहीं आता कि अब मैं कुछ बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलूं तो क्या बोलूं. और अगर उधर से कस्टमर एक दो ऑब्जेक्शंस क्रिएट करता है तो फिर वो पसीने से भर जाते हैं. देखो, और फिर क्या होता है कि योर कस्टमर जो है, वो कस्टमर आप पे हावी हो जाता है. वो आपको, आपसे सवाल पूछता है. हु आस्क द क्वेश्चन हैज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन. Got it? Has the power of conversation. So learn to ask right questions. You can watch my YouTube videos in my YouTube channel. There I have given some criteria, 5 right questions जो हमें हमेशा याद रखनी है. जब भी हमें कोई डीएम करता है या कोई मैसेज करता है या कॉल करता है, वी शुड आस्क दस 5 right questions. Why? What motivated you to connect with me? Got it? Just let me again, yeah, give here that.
5 राइट क्वेश्चंस जो है वो आपको जो पूछने होते हैं, वो ऑलवेज यू हैव टू टेक केयर. 5 right question what you have to always take. First question is, what motivated you to connect with me? This question you should ask. हो सकता है क्या उनको मोटिवेट किया हो, आपको ये जानना चाहिए. और हो सकता है कि उसी में उनका बेसिक नीड पता चल जाए क्यों उन्होंने कनेक्ट किया. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाई और व्हाट मोटिवेटेड यू टू कनेक्ट विथ मी. सेकंड, व्हाट यू वांट टू टेक फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन. आप इस कन्वर्सेशन से क्या लेकर जाना चाहते हैं, क्या आपका मोटिव है या क्या आपका लक्ष्य है, मुझसे क्या आपको चाहिए. द सेकंड क्वेश्चन. थर्ड, you should ask how you will feel if you will get the same thing what you want from this conversation. Third important question, how you will feel when you get the same things, same result from this conversation. Then fourth question you should ask, what problem you are suffering. उनके प्रॉब्लम पे जाना है. और फिफ्थ, from how many days this problem you are suffering from this problem. These 5 right question if you will ask, then what will happen, they will take you as an authority. At the same time you will get the total reality of your client. Then it will become for easier for you to close him, to give them best solution and take get the transaction from there. So 5 right question if you ask, you can close easily. Got it? So this 5 right question you should practice again and again. That is not an easy, but you have to practice it with your client whenever you get. कई बार हम एक दो क्वेश्चन पूछते तीसरा भूल जाते हैं. So asking right question is the powerful thing in closing. High ticket closing requires asking right question, using silence. कई बार हम बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा कर दूंगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो वैसा होगा. जितना आप बोलते हैं उतना आप सेल्स लूज करते हैं. जब भी आप किसी के साथ वन ऑन वन कन्वर्सेशन में है तो यू शुड आस्क क्वेश्चन एंड देन लिसन मोर. इट शुड बी 80% listening and only 20% speaking, using your silence. Sometimes give them space to talk. मैनी अ टाइम सेल्स पर्सन क्या करते हैं, वो बोलते ही जाते हैं प्रोडक्ट के फीचर के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की सारी चीजों के बारे में. वो समझते ही नहीं है कि सामने वालों को एग्जैक्ट क्या रिक्वायरमेंट है. और जब सामने वालों को ये समझ में आता है कि इन्होंने मुझे समझा ही नहीं, तो सेल्स खत्म. एंड सेल्स इज टोटली डाउन. वहां से सेल्स नहीं हो पाती क्योंकि वी डू नॉट अंडरस्टैंड आवर कस्टमर. वी ओनली स्पीक स्पीक एंड स्पीक. तो लर्न एंड दिस इज अ प्रैक्टिस. यू कैन नॉट, ये बहुत मुश्किल है कि अपने आप को बोलने से रोकना. व्हाट इफ वी आर द फर्स्ट टू डीएम क्लाइंट, व्हाट टू आस्क देन. ओके, सो समटाइम्स वी हैव टू डीएम आवर क्लाइंट्स. सो वो जब हम डीएम करते हैं तो दैट शुड बी वेरी फॉर्मल because they don't know so much about us. They don't know what more things we can what we do or how much we can impact and all these things. So what we should do, we should just do a formal talk, and we should mention that what video or what content of him we saw and then we connected. We should mention it transparently. For example, if they have made some video or they have given a picture of some area, and you can start talking from that. Oh, hi, how are you? I have seen that video you made. That was powerful.
and he will thank you, and then you will ask how many days you are doing this. So when you are asking about their activities, about their movements, they become interested in you. Rather than saying it, I do this, never. Go with their what you do, how you do. You talk with them like you are a customer first. Make them feel that you are a customer. And then when they will start sharing all these things, then you can tell them that I also help these kind of people, and I have done this for some people. If you want, we can connect one on one. Then they will ask ki, why what you why will you want to connect one on one? So just I want to help you to get this result in this much of time. Got it? So formal talking, and there is no requirement of a script. As a human, you should talk. Many a people sell their script. But what if they engaged on our content and then we DM them? Should we DM? Just 1 second. But what if they engage on our content and then we DM them? Should we DM and ask what resonated with them in content? Yes, we can ask this question. If they have engaged on our content, then we can ask this question, what what are the things you liked about this content, or how it has helped you? Got it? How it has helped you? You can ask them this question, and then you can go. You can ask them some. You can also go to their profile, see their pictures and all these things, and start communicating through there. Got it? So you can do this. You can share. You cannot directly pitch. You should not directly pitch actually. Many a time we pitch directly. Do you want to get these services? Do you want, should I help you in that? Don't know. You don't go like that. You just say that I do this for the people who is suffering for these issues. If anybody is suffering from this issue, then you can, yeah. If cold reaching people, yeah, sorry. Just let me, you can, if you can speak, it will be better if you can just talk. Hello. Yeah, Neha ji. Yeah, Yes. I'm asking अगर like हम cold reach करते हैं, like they have not Hmm. engaged with our content and we just find the people who share similar kind of things like my ICP, and I just cold reach them and tell Hmm. them about myself that I also do this. Then how should I approach? Should I use a script or should I just connect with hi, hello, I like your content? Yeah, first you should always connect formally. Hmm. Formally in the sense ki if you have seen his birthday, or you some events is happened in his means profile, you go through their profile first. Understand what they do, what content they. So anybody in social media would have shared something or anything. So you just observe them and then find out some topic in which they are interested. Yeah, same type of things if they are repeating. For example, somebody is sharing some video about one topic. So you can talk about that topic, you start conversation from there. Got it? And then you can, because first, what important thing is, first we should take their interest in the conversation. Hmm. Yes. Got it? They should be interested in conversation with you, first of all. And second, they should be engaged. Hmm. मतलब वो एंगेज हो जाए आपके बातों से, आपके बातों में वो एंगेज हो, मतलब दे शुड बी एंगेज। देन उसके बाद आपको उसको नेक्स्ट लेवल में लेके जाना है, आपको उस टॉपिक पे जाना है डीपली।
जिस टॉपिक पे आप उनको गाइड करना चाहते हैं, उस टॉपिक के बारे में उनके विचार समझना है, व्हाट दे थिंक अबाउट इट। इफ यू फील दैट दे अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट इट, then you can tell them that I do this and this is, they will definitely like it and will ask you for their services. But directly sometimes हम लोग directly DM कर सकते हैं, Okay. hi, yeah, you got the answer, anything. Yes. Okay, and when okay, everything is done, but when about asking money, then it is very tough to ask money. So this, Yeah, वो ममता मैडम भी वही बोल रही थी कि आस्किंग मनी वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर इनिशियली। सो हमें मनी के बारे में बात नहीं करना है, हमें उनके प्रॉब्लम को पहले क्लोजिंग के बारे में बात करना है, प्रॉब्लम के डीप में समझने के बारे में फोकस करना है, जैसे डॉक्टर्स करते हैं। वो प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, कब से हो रहा है, कितने दिनों से हो रहा है, क्या है, कैसे हुआ था। इस तरीके से जब आप डीपली जाओगे तो फिर वो उस मोड में नहीं जाएंगे कि अब मैं पे नहीं कर सकता। क्योंकि क्या होता है कि जब वो अपना प्रॉब्लम आपसे शेयर कर देते हैं, जब वो डीपली आपके अपना स्टोरी आपको शेयर कर देते हैं, तो व्हाट दे फील एन कनेक्शन विथ यू, गॉट इट। सो जब वो अपना कनेक्शन फील करते हैं, उसके बाद मनी डजंट बिकम अ मैटर। मनी, देखो मनी कहाँ मैटर करता है, मनी जहां वही मैटर करता है जहां ट्रस्ट की कमी है या जहां डाउट है। ठीक है, तो आप उनका ट्रस्ट और डाउट, ये सबको, ट्रस्ट बिल्ड कर दो, डाउट खत्म कर दो। उसके बाद जब आप मनी की बात करेंगे ना, तो दैट विल बिकम अ फॉर्मल डिस्कशन। जैसे कि हम लोग अपने फादर से बात कर रहे हैं या अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं कि भाई 50K चाहिए, या ऐसे जैसे नॉर्मल बात करते हैं, तो वो क्या होता है, एक नॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है, फिर उसमें फियर नहीं रहता कि मनी के बारे में क्या है। बट जब ट्रस्ट नहीं होता है, जहां हमें थोड़ा सा भी ट्रस्ट का कमी लगता है, तो मनी के बारे में बात करने में डिफिकल्टी होती है। गॉट इट। बट सर जैसे अभी आजकल बहुत ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन काफी सारी कोचेज हैं, बहुत मतलब पैसे ले लेते हैं, उसके बाद सर्विस अच्छी नहीं देते, तो काफी लोगों के लगता है अंदर कि में हाँ। एक वो ये है डाउट, लोगों के मन में ये है कि लोग पैसे दे दूंगा उसके बाद काम होगा कि नहीं होगा, नॉर्मली ये हाँ, डाउट है। राइट। तो आप क्या कर सकते हो ना, जैसे आप उनका 30% या 20, 30%, 40% काम कर दो। गॉट इट। तो इससे कोई इससे अपना ही स्किल इंप्रूव होता है, और उनका अगर 30-40% काम हो जाता है, तो फिर उनको ऐसा फील होता है कि हाँ यहाँ पे काम हो रहा है, तो फिर पैसे देने में वो हिचकिचाते नहीं। डेफिनेटली ट्रस्ट का यहाँ पे इशू अभी है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में सर्विस देते हैं, पैसा ले लेते हैं, उसके बाद सर्विस नहीं देते। ऐसा कई बहुत लोग करते हैं, तो ये ट्रस्ट का इशू है। बट व्हेन यू work with people deeply and solve their problem, some way you take them, hand hold them for somewhere, some time, but वो एफर्ट करने वाले हो शुरू में उनसे, डेफिनेटली यू शुड टेल अबाउट द प्राइसेस एंड ऑल दिस थिंग्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइस के बारे में कहीं बात ही नहीं हुई है, या आप पैसे लेते हो, चार्ज करते हो, ये उनको पता ही नहीं है, और आप उनको हेल्प कर रहे हो। तो इम्पोर्टेंट ये है, यू शुड definitely communicate that professionally I am doing this and I charge this much of money first। अगर उसके बाद वो आपसे कनेक्ट रहते हैं और उसके बाद वो आपसे हेल्प लेते हैं, तो डेफिनेटली उनके माइंड में ये है कि आई हैव टू पे। तो जब भी कम्युनिकेशन हो, कुछ हो, तो अपफ्रंट यू कैन टॉक अबाउट मनी। स्टार्टिंग में भी आप मनी के बारे में बात कर सकते हो। आप डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि मुझे आप पैसे दे दो, आपको ऐसे बोलना है कि आई डू दिस फॉर सो मेनी पीपल एंड आई चार्ज दिस मच ऑफ मनी। If again they come in talk, that means they are feeling that they can afford this. If they are stopping the talk, it means that they are not ready to pay, or they are feeling something else, trust जो भी है। So इनिशियली अगर आप बोल देते हो, तो वहां क्लैरिटी हो जाती है कि हाँ दिस पर्सन चार्जेस मनी, not this is not a free program only। but after that if you help them and take them halfway, they will definitely pay। ओके, तो जैसे टू थिंग्स, अभी हाँ।
जैसे किसी पर्सन से बात हो रहा है तो वैसे कुछ लोग होगा जैसे हम रिसर्च करते हैं क्लाइंट के प्रोफाइल पे, तो जैसे कोई क्लाइंट बोल रहा नहीं मैं इतना थोड़ा डिस्काउंट कर दो, तो डिस्काउंट देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए? If you are you should know your worth, means what, if you are going to give them 3 months and lots of hours to them, तो you know the prices कितना आपको वर्थ देना है. फॉर एग्जाम्पल, if you charge for 4 months, you charge 50K, just taking a 50K, you charge 50K for 4 months, and और उसमें भी अगर कोई डिस्काउंट मांग रहा है तो कभी नहीं देना है, क्योंकि इट्स नॉट योर वर्थ. खुद को टेंशन में डाल के काम नहीं करने का. गॉट इट. उनको बोलने का यस। है कि as it is already, means people are charging for this 1 lakhs more and more, 1 lakhs and more, and you will get more than this. If you believe, we can go forward. If you don't believe, no issue, but no discount नहीं देने का. डिस्काउंट तब देने का है जैसे कि आपने ओवर आपने, और जो कई बार हम लोग ऐसा करते हैं, ह्यूमन मेंटेलिटी है कि लोग पैसा कम कराने की चाहते ही हैं. तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्टार्ट विथ 2 lakhs एंड देन क्लोज एट 50K और 1 lakhs, वट एवर. गॉट इट. जब आप 2 lakhs का सर्विसेज दोगे, आप उनको बताओगे ये पूरा सर्विसेज 2 lakhs का है, और डेफिनेटली है कि हम लोग जब 4 months 5 months डीपली किसी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो 2 lakhs रुपीज इज नॉट सो मच, बिकॉज वी आर गिविंग वेरी इंपॉर्टेंट प्रीसियस टाइम ऑफ अस. गॉट इट. सो जब हम इतना डीपली टाइम किसी को दे रहे हैं, तो उसके लिए हमें उसका जो वर्थ है, वो एक्चुअली हमारा जो टाइम का वर्थ है, वो हमें लेना ही चाहिए. सो 2 lakhs रुपीज हमें उनको बताना है, और उसके बाद अगर आप कुछ डिस्काउंट उनको दे तो वो आपके लिए भी दिक्कत नहीं है, उनके लिए भी दिक्कत नहीं है. फॉर बोथ ऑफ देम, both of you are, there is a win-win situation, because if you are giving them a price of 2 lakhs but giving them 50% discount and 1 lakh, so what happens कि they feel yes डिस्काउंट मिला है, और at the same time you feel that कि जो प्राइस जो वर्थ है वो मिला है. तो ये इंडियन मेंटेलिटी है कि उनको डिस्काउंट, बोनसेस, ये सारी चीजें ज्यादा पसंद है कोर्स सब्जेक्ट से. गॉट इट. या थैंक यू। या तो लेट्स हम लोग खत्म करते हैं आज का रिमेनिंग. यूजिंग साइलेंस, तो वो मैं बता रहा था कि समटाइम्स यू नीड टू बी साइलेंट. कुछ अगर वो पूछ रहे हैं और वो कुछ जवाब आपको नहीं देना है, तो आप साइलेंस यूज कर लो. कई बार लोग पूछते हैं कि मुझे इतना ही में ही चाहिए, कुछ नहीं जवाब देना है, साइलेंट हो जाना है. दे विल अंडरस्टैंड कि कुछ भी है, वो फिर अपने आप आपको बोलेंगे सॉरी मैं ऐसे ही पूछ रहा था. तो यूज साइलेंस. क्वालिफाई द प्रोस्पेक्ट. क्वालिफाई इन द सेंस कि उनकी प्रोफाइल में जाना है, समझना है वो बायर है नहीं, वो कि उन्होंने कभी कोचिंग सर्विसेज ली है कि नहीं, या उन्होंने किसी से हेल्प लिया है कि नहीं. अगर ये सारी चीजें आप समझ पाओगे, तो आपको लगेगा नहीं दे आर अ क्वालिफाइड पर्सन. और फिर उनको वन ऑन वन में फिर से एक बार क्वालिफाई कर लेना है, वन ऑन वन या मैसेजिंग में, डीएम में. फर्स्ट आपको क्वालिफाई करना है. क्वालिफाई करने का दो फैक्टर है. फर्स्ट, दे रियली facing the issue. Second, they telling them this is chargeable services and this much of money I charge, means qualifying. अगर उसके बाद कांटेक्ट कंटिन्यू होता है, that means that they are agree to pay. नहीं कंटिन्यू होता है तो कोई बात नहीं है, नो इश्यू. हम लोग क्लाइंट्स की कमी नहीं है. there are lakhs of people waiting for your support. सो 4 स्टेजेस है जो कि हम लोग एक बार समझ लेते हैं. 4 स्टेजेस में क्लोजिंग होती है. क्लोजिंग की जो स्किल है उसको, तो फर्स्ट है कि हमें जो भी अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ऑल दीज आर फंडामेंटल्स. फंडामेंटल्स, जैसे हम लोग स्कूल्स में क्या होता है, फॉर्मूलाज होते हैं. तो मैं जो भी बता रहा हूँ फॉर्मूला बता रहा हूँ, बट फॉर्मूला से आप सॉल्व नहीं कर सकते. यू नीड टू प्रैक्टिस. गॉट इट. सो लर्न द फंडामेंटल, अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स. प्रिंसिपल जैसे मैंने बोला कि क्लियर रखना है कि आई चार्ज, दिस इज अ प्रिंसिपल. इसको एक प्रिंसिपल बना लेना है. कई बार क्या होता है, लोग ये सोचते हैं कि 2-3 घंटे इनसे फ्री सर्विसेज ले लेता हूँ, उसके बाद फिर बोल दूंगा कि नहीं पैसे नहीं है.
तो वो नहीं करना है। क्या अपने को स्टार्टिंग में ही उनको क्लियर कर देना है कि आई चार्ज दिस मच ऑफ मनी फॉर दिस मच ऑफ टाइम, लाइक दिस। ओके, अगर आपको नहीं चाहिए तो 5 मिनट में उनको छोड़ देने का है। अंडरस्टैंड, ये प्रिंसिपल क्रिएट करना है अपने माइंड में, ऐसा प्रिंसिपल होना है। और मैंने जैसे बोला कि ये स्किल है तो इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। कई बार सिंपली घर पे भी आप क्लोजिंग स्किल प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे बच्चों के साथ भी कर सकते हो, क्योंकि बच्चे बहुत फास्ट सोचते हैं और वो, नेगोशिएटिव। हाँ, बहुत अच्छा नेगोशिएट करते हैं। तो उनका एक अलग है, उनका नेचुरल स्किल है। बट जैसे जैसे हम ग्रो करते जाते हैं, हम ज्यादा मेच्योर हो जाते हैं, वो नेगोशिएशन स्किल भूल जाते हैं। बट बच्चे करते हैं, वो बच्चे करते हैं क्योंकि नेचुरल है वो उनके लिए। वो मम्मी पापा को कैसे कन्विंस करना है कि मुझे कार लेना है, वो किसी ना किसी तरह कर लेते हैं। गॉट इट। तो आपको बच्चों के साथ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप कोई बच्चा अगर दूध नहीं पीता है, सिंपल, आप प्रैक्टिस करो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में आप समझ जाओगे कि इसको कैसे दूध पिलाना है। तो यू विल लर्न दिस क्लोजिंग स्किल इन योर होम ओनली, है ना। कई बार जो होता है कि हस्बैंड कहीं घुमाने नहीं लेके जाते, हफ्ता 10 दिन हो गया नहीं घुमाने लेके गए, आपका मन हो रहा है लेकिन वो नहीं। तो नाउ यू नीड टू यूटिलाइज योर क्लोजिंग स्किल, कि इनको क्लोज करना है फॉर सम ट्रिप। गॉट इट। ये थोड़ा सा पर्सनल सीक्रेट सब बता रहा हूं मैं, ज्यादा सबको नहीं बताने का है, नहीं तो वो हम ही पे अप्लाई कर लेंगे। ओके, सॉरी, ये कहाँ गया, हाँ। फॉरगेट इट एंड लेट इट फ्लो, मतलब इतना प्रैक्टिस करना है कि ये आपको नींद में भी अगर कोई आपको कॉल आए तो यू कैन टॉक इन दैट मैनर। आपको क्वेश्चंस याद हो, क्या क्या पूछना है, मतलब याद नहीं हो, आपको याद करने की जरूरत ना पड़े, ऑटोमेटिकली ये फ्लो में आए। तो इतना आपको प्रैक्टिस करना है। अपने आसपास के लोगों से कहीं भी कोई कनेक्ट करता है या कोई भी डीएम है तो डीएम में भी बात करके आपको इसको स्किल को ये करना है। क्योंकि क्लोजिंग स्किल नहीं होगा तो आप छोटा से छोटा प्रोडक्ट हो या बड़ा से बड़ा प्रोडक्ट हो, सब में क्लोजिंग स्किल लगता है। छोटा प्रोडक्ट में थोड़ा सा लगता है कम है, लेकिन छोटा प्रोडक्ट में भी उतना ही लगता है। रोल प्ले कर सकते हो आप, रोल प्ले। एंड हम लोग क्या करते हैं अपनी कम्युनिटी में, 5 लोग रहते हैं और रोल प्ले करते हैं। मीन्स 1 बिकम कस्टमर और क्लाइंट एंड 1 बिकम क्लोजर। और फिर हम लोग कम्युनिकेट, मतलब ये करते हैं, मैं ऑफर बताता हूँ, वो बोलता है कि नहीं मुझे, मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर मैं इतना ही दे सकता हूँ। फिर मैं उसको किस तरीके से ये करता हूँ, कम्युनिकेट करता हूँ, अपना वैल्यू किस तरीके से कम्युनिकेट करता हूँ, फिर किस तरीके से क्लोजिंग होती है। तो वो जब आप रोल प्ले करते हो ना, तो जैसे कि ममता जी आई थी, तो उन्होंने शुरू में यही बोला कि मैं पैसा नहीं ले सकती, मैं फ्री करते रहूंगी। मैंने बोला भाई पैसा ही नहीं लोगे तो फिर आप मुझे पे कैसे करोगे, या फिर आप अपने अपने ऊपर इन्वेस्ट कैसे करोगे आगे बढ़ने के लिए, आप आगे बढ़ोगे कैसे। यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। तो कहाँ से करोगे, तो दैट योर क्लाइंट्स इज योर गॉड, यू हैव टू सर्व योर क्लाइंट एंड योर गॉड विल पे यू। हम्म, तो फिर हमने उनके साथ बहुत रोल प्ले किया, बहुत रोल प्ले किया कंटिन्यू। तो वो हिम हार जाती थी, नहीं अब मैं नहीं क्लोज कर पाऊंगी आपको। मैंने बोला मैं ऑब्जेक्शन डालूंगा, आपको उसको क्लोज करना है। गॉट इट। तो रोल प्ले मेक्स यू स्ट्रोंगर, और सामने वाला स्ट्रोंगर है तो आपको और डिफिकल्टीज होगी, लेकिन आप धीरे धीरे इस स्किल में स्ट्रांग बनोगे। तो बहुत बार जो है, मैनी अ टाइम मनी इशू नहीं होता, इशू होता है आपका स्किल। आपके स्किल में कहीं कमी है जिसके कारण वो हावी हो जाता है। आपका कस्टमर आपसे सवाल करने लगता है, आपका कस्टमर आपको फिर बोलने लगता है नहीं आपने तो इतना कहा था, फिर आपने तो ये कहा था, तो आपने तो वो कहा था। फिर आप बोलते हो, फेडअप होके बोलते हो कोई बात नहीं मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। तो ये मैनी टाइम जो है कस्टमर्स जो है वो तो ये हमारे स्किल की इशू है। हम स्किल को डेवलप करेंगे, यस थैंक यू, स्किल को डेवलप करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग ये पाएंगे कि मनी बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत स्किल है। हमारा इशू इशू जो है हमारे स्किल्स में। हमें अपने स्किल्स पे इम्प्रूव करते जाना है। कोई भी एक दिन में नहीं होता है, वो स्लोली स्लोली होता है। सचिन तेंदुलकर एक दिन में मास्टर ब्लास्टर नहीं हुआ था,
उसे भी टाइम लगा, 5 साल 7 साल प्रैक्टिस करके वो मास्टर, वो ड्राइविंग स्किल सीखा उसने। ठीक है, वैल्यू यू शो इज द इशू। ठीक, फिर से मैं आता हूं, मनी इज नॉट द इशू, वैल्यू, जो हम वैल्यू शो करते हैं, जो मैंने बताया था ऑफर क्रिएशन, तो वो ऑफर क्रिएशन जो है वो आपका वैल्यू को प्रेजेंट करता है। तो उसको करते हम लोग सब कुछ है, बट जब हम प्रेजेंट करते हैं वैल्यू को, वहां पे हम बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं जो कि उनको रिजल्ट अचीव करने में हेल्प करेगी। तो इस कंडीशन में हम कहीं ना कहीं वो फंस जाते हैं और क्लोज नहीं कर पाते। तो यू शुड नो हाउ टू शो देम वैल्यू ऑफ योर वैल्यू। इट्स नॉट योर प्रोडक्ट वैल्यू, इट्स योर टाइम वैल्यू। अगर मैं आपको 1 घंटा टाइम दे रही हूं तो इट्स वर्थ, ये इतना वर्थ है कि कई बार आप देखोगे कि किसी लोगों से अपॉइंटमेंट लेने का भी चार्ज देना पड़ता है, कुछ डॉक्टर्स का। तो ये वैल्यू उन्होंने क्रिएट कर दिया है मार्केट में कि भैया अपॉइंटमेंट भी लेना है तो पहले 100 रुपीज दे दो, आओ चाहे मत आओ। उसके बाद फिर वो डॉक्टर देखते हैं और उसका चार्ज 500 अलग है। गॉट इट? सो दे हैव क्रिएटेड, और उसके लिए लोग 100 रुपीज भी देने के लिए तैयार है, क्योंकि दे थिंक कि दैट इज ही इज द बेस्ट डॉक्टर उस फील्ड में, है ना। तो लोग अपॉइंटमेंट के लिए 100 रुपीज दे करके अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, डॉक्टर आएगा। तब उनको मौका भी चाहिए, वो बार बार मेरा टाइम आया कि नहीं, मेरा टाइम आया कि नहीं। दे आर रेडी टू पे कि भैया पैसे ले लो लेकिन मेरा प्रॉब्लम ठीक कर दो। रेडी, पीपल आर रेडी, रेडी टू पे, ऑलवेज पीपल आर रेडी टू पे। बस उनको ये बिलीव होना चाहिए कि यहां से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सो वो बिलीव हमको क्रिएट करना है थ्रू आवर स्किल्स, थ्रू आवर वैल्यू, व्हाट वैल्यू वी शो टू द पीपल। गॉट इट? सो जब आप अच्छे टेस्टिमोनियल्स कुछ क्रिएट कर लोगे, 3 4 5, तो ऑटोमेटिकली है कि आप मार्केट में अपना वैल्यू क्रिएट कर लोगे। तो अच्छे टेस्टिमोनियल्स क्रिएट करो जिसमें कि वीडियो टेस्टिमोनियल्स आपको मिले। इतना लोगों को हेल्प कर दो, कुछ 4 5 लोगों को इतना हेल्प कर दो कि वो दिल से आपके लिए टेस्टिमोनियल्स बना दे। वो 5 टेस्टिमोनियल्स जो है वो आपको रोल आउट करते रहना है। दैट 5 टेस्टिमोनियल्स विल बिकम योर, मीन्स विल मेक यू एन ऑथोरिटी इन दिस, इन योर फील्ड। गॉट इट? उसके बाद उसके चाहे वो टेक्स्ट हो, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लो आप उस टेस्टिमोनियल्स को, उस पे एक स्टोरी लिख दो, उस पे आप वीडियो, उसकी वीडियो को डायरेक्ट डाल सकते हो, या उस पे आप एक वीडियो बना लो कि भाई ये टेस्टिमोनियल मुझे मिला, इसमें ये ऐसे ऐसे मैंने उनको हेल्प किया इस तरीके से। तो यूज योर टेस्टिमोनियल्स, यूज द स्टोरी, वट एवर यू हैव इम्पैक्टेड पीपल, so that increases your value in the market. People pay that much what the market understand your value. Learn to ask, बार बार मैं ये बोलता हूं कि आपको क्वेश्चन पूछना आना चाहिए, क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। जो भी वुमेन एक है, यस, कई बार क्या होता है, क्लाइंट से वैसे बात कर रहे हैं, हमने क्लाइंट को मैसेज किया, क्लाइंट एकदम से गायब हो जाता है, मतलब बात करते करते, तो क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए या फिर दोबारा उसको मैसेज करना चाहिए? नहीं, जैसे ऐसा कुछ होता है, अगर जैसे क्लाइंट अगर आप बात कर रहे हैं और इन बिटवीन में वो अब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, हम्म। सो आपको वेट करना है, 1 डे वेट करना है, कि अगर 1 डे वेट करके नेक्स्ट डे जो है उनको एक जस्ट हाय ये देना है। अगर उसके बाद अगर 1 वीक तक कंटिन्यू अगर कोई रिस्पॉन्ड नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो व्हाट एवर डिस्कशंस यू हैड, कुछ डिस्कशंस तो हुआ होगा, उससे हम्म। रिगार्डिंग कुछ कंटेंट आप उनको प्रोवाइड कर दो। जैसे कि आपका हम्म। खुद का कुछ वीडियो होगा उससे हम्म। रिगार्डिंग जिस टॉपिक पे, या आप खुद राइट। वीडियो बना लो। यू कैन मेक अ वीडियो, या हम्म। मेक अ सिंपल 8 9 लाइंस का कुछ कंटेंट बना लो, और फिर ये उनको फिर से दे दो कि हम्म। आपने ये प्रॉब्लम शेयर किया था एंड आई फाउंड दिस यूजफुल फॉर यू। गॉट इट? सो यू आर गिविंग, सो यू आर एन अथॉरिटी, हम्म। you are not asking anything, you are just giving. So give them some other
वेज, जैसे फॉर एग्जाम्पल सम फोटोज उनको दे दो उनके प्रॉब्लम के बारे में, और मेंशन कर देना कि आई थॉट वो जो प्रॉब्लम आपने बोला था उसके लिए ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, ये फोटो में कुछ अगर मैसेजेस, ये दिस मैसेज या दिस कंटेंट इज यूजफुल फॉर यू। सो इफ यू कैन गिव, तो उनको रिमाइंड आएगा, हाँ हमने तो डिस्कस किया था, और नेहा ने अच्छा बना के दिया है, अच्छा इसके बारे में कंटेंट दिया है, देन अगेन वो आपका कन्वर्सेशन स्टार्ट हो सकता है, चांसेस फिर से बढ़ जाते हैं, बिकॉज दे फील कि यू रियली केयर अबाउट देम। तो फॉलो अप, हम लोग को डायरेक्ट फॉलो अप नहीं करना है कि व्हाट यू मीन्स आई हैव कम्युनिकेटेड विथ यू बट यू हैव नॉट रिस्पॉन्डेड, सो कैन वी टॉक। अगर ऐसे करते हैं तो फिर से वो उसी मोड में है, कुछ चेंजेस तो आया नहीं, तो यू हैव टू ब्रिंग सम कन्वर्सेशन में कुछ चेंजेस लाना है, कुछ नरिशमेंट लाना है, फ्रेश करना है, फिर से उसको फिर से जीरो पे जाना है, मतलब जो प्रॉब्लम वो शेयर किया था उसी प्रॉब्लम का कुछ कंटेंट, आपको अपना कंटेंट हो या कोई अच्छे मेंटर का कंटेंट हो जो आपको लग रहा है कि बहुत यूजफुल है, तो वो बोलना है कि मैंने इस यहाँ से बहुत कुछ सीखा है, तो आई थिंक यू कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम दिस, शेयर करना है, तो दे विल थिंक यस शी रिमेम्बर्स मी एंड शी टेक केयर ऑफ मी, गॉट इट। तो ये एक फॉलो अप भी हो गया, मतलब आप फॉलो अप कर नहीं रहे हैं बट ये फॉलो अप भी है, राइट। गॉट इट। सो इस तरीके से हम लोग उनको फॉलो अप कर सकते हैं। So this is tomorrow we will understand deep on how we can make our system, means क्या प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए, फनेल क्या चीज होता है, मतलब एग्जैक्टली आज के डेट में कौन सा फनेल काम कर रहा है, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीजों को कल हम लोग डिस्कस करेंगे। और कल ऑल्सो वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी स्पेशल guest, and she is also going to share lots of insights about this, how she is closing people and how she is doing all these things. So बहुत मजा आने वाला है, कल का प्रोग्राम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। So definitely tomorrow 8 PM संडे है, बट बहुत वैल्यूएबल सेशन होगा कल का। So ज्वाइन कीजिए tomorrow। Anything you want to ask about today's session, जो भी कुछ अच्छा लगा, whatever. Got it? So thank you so much for being here, learning. I think you are learning. You all are learning something today. Great. So share your feedback in our WhatsApp group, and about tomorrow sessions, we will be sharing who is coming and what are the topics we will discuss tomorrow. Thank you so much. Have a great day and lots of gratefulness for you. Bye bye. Good night. Good night.